پیش خدمت ہے کہانی امبر ناگ ماریا کے قسط نمبر 94 سانپ کی آواز۔ ناگ کی آنکھوں کے سامنے ڈاکو سلطان کی تلوار چمکی۔ اس خوفناک ڈاکو نے سینکڑوں انسانوں کو قتل کیا تھا۔ اس کے لیے ناگ کی گردن اڑا دینا کوئی انوکھی بات نہیں تھی۔ یہ ایسی ہی آسان بات تھی جیسے کوئی آدمی چاقو سے گاجر کاٹ ڈالے۔ مگر ناگ بھی غافل نہیں تھا۔ جو ہی ڈاکو تلوار لہراتا ہوا اس کی طرف بڑھا، اس نے گہرا سانس لیا اور ایک ننھی سی چڑیا بن کر اڑ گیا۔ ڈاکو نے چڑیا کو نہ دیکھا بلکہ یہی دیکھا کہ ناگ غائب ہو گیا ہے۔ سارے کے سارے ڈاکو دنگ رہ گئے۔ سردار تو تلوار کو پکڑے دیکھتے کا دیکھتا رہ گیا کہ وہ آدمی جو ابھی اس کے سامنے کھڑا تھا کہاں چلا گیا۔ اس کے ہاتھ بھی رسیوں میں بندھے تھے۔ سب ڈاکو بت بنے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ آخر سردار سلطان چاروں طرف نظریں گھما کر بولا، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ وہ کہاں چلا گیا؟ ایک ڈاکو نے سہمی آواز میں کہا، سردار میں نے ایک چڑیا کو اڑتے دیکھا تھا۔ سردار نے طیش میں آ کر کہا، کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ وہ آدمی چڑیا بن کر اڑ گیا ہے؟ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ جادو ہے، خوفناک جادو ہے۔ دوسرا ڈاکو بولا، سردار یہ کوئی جادوگر تھا، یہ جادو کے ذریعے ہی غار میں آیا تھا۔ ڈاکو ادھر ادھر چڑیا کو تلاش کرنے لگے۔ سردار کچھ گھبرا گیا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں ایسا نظارہ کبھی نہیں دیکھا تھا کہ ایک آدمی اس کی تلوار کے نیچے سے غائب ہو جائے۔ ناگ چڑیا بن کر اڑ گیا اور غار کی چھت میں ایک جگہ کھو میں بیٹھا یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ غار کا دروازہ بند تھا۔ ناظمہ یہاں نہیں تھی اور اب وہ یہ چاہتا تھا کہ ڈاکوؤں کی گفتگو سے یہ معلوم کرے کہ ناظمہ کہاں ہے، مگر سردار ناظمہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا تھا۔ اس نے علی بابا کے چچا قاسم کی چھوڑی ہوئی ایک جوتی اٹھا کر کہا، جو غائب ہو گیا ہے اس کو چھوڑو۔ لاش کی ایک جوتی یہاں رہ گئی ہے۔ جو شخص لاش کو یہاں سے نکال کر لے گیا ہے وہی شخص ہمارا لوٹا ہوا مال یہاں سے چرا کر لے گیا ہے۔ پھر اس نے ایک ڈاکو کو آگے بلا کر کہا، عبدل تم یہ جوتی لے کر شہر جاؤ اور پتہ کر کے آؤ کہ یہ جوتی جس شخص کی ہے وہ کہاں رہتا ہے۔ عبدل نے جوتی تھیلے میں ڈالی اور کہا، میں ابھی جاتا ہوں سردار۔ عبدل ڈاکو نے غار کے منہ پر جا کر زور سے آواز دی، کھل جا سم سم۔ غار کا چٹانی دروازہ گڑ گڑاہٹ کے ساتھ اپنی جگہ سے کھسک گیا۔ عبدل ڈاکو گھوڑے پر سوار وہاں سے نکل گیا۔ ناگ چڑیا بنا غار کی چھت میں چھپا رہا۔ سردار سلطان اپنے ایک خاص ڈاکو دوست کو ساتھ لے کر غار کے کھو میں آ گیا۔ ناگ نے سوچا کہ ضرور سلطان ڈاکو یہاں سے دوست سے راز کی باتیں کرے گا۔ بس وہ چھت سے اترا اور اڑتا ہوا کھو کے اندر چلا گیا۔ سلطان ڈاکو نے چڑیا کو نہیں دیکھا تھا۔ سردار ایک طرف چوکی پر بیٹھ گیا اور تش میں سے سیب اٹھا کر کھانے لگا۔ اس کا ساتھی بولا، اس عورت کے بارے میں اب آپ کا کیا ارادہ ہے سردار؟ سردار سیب کھاتے کھاتے ہاتھ ہلا کر بولا، میں چاہتا ہوں کہ اسے تاجدار زید کے ہاتھ بیچ دوں۔ مجھے امید ہے کہ وہ اس عورت کے بدلے مجھے 1,00,000 اشرفیاں دے دے گا۔ اتنی بھاری رقم وہ شاید نہ دے۔ اگر وہ نہیں دے گا تو میں اس کا سر کچل دوں گا۔ وہ کروڑ پتی سوداگر ہے۔ اس نے میری کنیز کو پسند کیا ہے، اس لیے میں اسے زید کے پاس چھوڑ آیا ہوں۔ کل میں اس کے پاس جا کر اپنی رقم لے آؤں گا۔ ساتھی نے کہا، سردار آپ نہ جائیں، میں جا کر لے آؤں گا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم ہی چلے جانا۔ ناگ سمجھ گیا کہ یہ باتیں جس عورت کے بارے میں ہو رہی ہیں وہ ناظمہ ہی ہے۔ اب وہ سردار کے ساتھی کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اسی ڈاکو کے ساتھ جائے گا تاکہ جہاں ناظمہ رکھی گئی ہے وہ جگہ معلوم کی جائے۔ سوال یہ تھا کہ یہ ڈاکو کس وقت جائے گا؟ سردار نے کہا تھا کہ وہ کل جائے گا۔ پھر ناگ کیا کرے؟ کیا اسی غار میں بیٹھا دوسرے دن کا انتظار کرے یا چلا جائے؟ ناگ نے سوچا کہ چلے جانا چاہیے۔ ہاں کل وہ پھر آئے گا یہاں، یہ سوچ کر ناگ اڑ کر غار کے دروازے پر آ گیا۔ یہاں کوئی ڈاکو نہیں تھا۔ غار کا دروازہ بند تھا۔ چڑیا پھر سے ناگ بن گئی۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کے بغیر زور سے کہا، کھل جا سم سم۔ اس آواز کے ساتھ ہی غار میں اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے ہوئے ڈاکو دروازے کی طرف بڑھے کہ یہ کون ہے جو ان کی اجازت کے بغیر باہر نکل رہا ہے۔ ڈاکو نے دور سے دیکھا کہ وہی نوجوان آدمی جو ان کے ہاتھوں سے غائب ہو گیا تھا دروازے کے پاس کھڑا ہے۔ انہوں نے دور سے ہی شور مچا دیا اور اس کی طرف نیزے پھینکے۔ دروازہ آدھا کھل چکا تھا۔ نیزے اور کلاڑیاں ناگ کے قریب آ کر گریں۔ ناگ نے گہرا سانس لیا اور عقاب بن کر پھڑپڑاتا ہوا غار سے باہر اڑ گیا۔ سردار بھی بھاگ کر وہاں آیا اور عقاب کو اڑ کر جاتے دیکھا۔ یہ وہی جادوگر تھا۔ اس نے سوچا، دشمن جادوگر ہمارے سارے راز لے کر بھاگ گیا ہے۔ سردار سلطان نے سر پر ہاتھ مار کر کہا، اس جادوگر کو قتل کر دینا چاہیے تھا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ ناگ جا چکا تھا۔ ڈاکو غار کے دروازے پر کھڑے پہاڑوں کے اوپر عقاب کو اڑتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ناگ اڑتے ہوئے اڑن دشتی پر آ گیا۔ اس نے ماریا اور امبر کو سارے حالات بتائے کہ سردار سلطان ڈاکو نے ناظمہ کو دمشق کے کسی کروڑ پتی تاجر زید کے پاس رکھ چھوڑا ہے اور وہ اس کے ہاتھ ناظمہ کو 1,00,000 اشرفیوں کے عوض بیچنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ امبر نے فکر مند ہو کر کہا، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں زید کا پتہ لگانا ہوگا کہ وہ کون ہے، کہاں رہتا ہے۔ ماریا نے کہا، وہ 1 کروڑ پتی تاجر ہے، اس کا پتہ لگانا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ ناگ نے بولا، سلطان ڈاکو کا ساتھی بھی تو زید کے پاس اپنے سردار کا پیام لے کر جا رہا ہے، کیوں نہ میں اس کے ساتھ ساتھ جاؤں؟ امبر نے کہا، بڑا اچھا خیال ہے۔ کل تمہیں غار کے باہر بیٹھ کر انتظار کرنا ہوگا۔ جو ہی ڈاکو باہر نکلے تم اس کا تعاقب کرنا شروع کر دینا اور تاجر زید کے گھر کا پورا پتہ لگا کر واپس آنا۔ ادھر یہ باتیں ہو رہی تھی، ادھر سلطان ڈاکو کا ساتھی عبد القاسم کی جوتی کا ایک پاؤں لے کر پتہ کرتا کرتا آخر اس موچی کے پاس پہنچ گیا
जिसने वो जूती बनाकर कासिम को दी थी। और फिर जिस तरह के आप अली बाबा की कहानी में पढ़ चुके हैं कि डाकू ने अली बाबा के घर को निशान लगाया और ख़ुद वापस सुल्तान डाकू के पास गार में आ गया। सुल्तान अपने साथी की कामयाबी पर बड़ा खुश हुआ। उसने उसे इनाम में अपना हार उतार कर दे दिया। दूसरे रोज़ सुल्तान डाकू तो अपने 2 साथी लेकर अली बाबा के घर की तरफ रवाना हो गया और उसका दोस्त जैद ताजर के घर की तरफ चला। नाग सुबह से गार के बाहर एक चट्टान के ऊपर कबूतर की शक्ल में बैठा डाकुओं के बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। जो ही उसने डाकू को घोड़े पर सवार बाहर निकलते देखा, वो भी उसके सर के ऊपर काफ़ी बुलंदी पर उड़ने लगा। डाकू शहर के जनूबी दरवाजे की जानिब से दाखिल हुआ। उस इलाके में बड़े खुशनुमा बाग थे। उन बागों में एक बाग के अंदर बड़ी खूबसूरत हवेली थी जो दूर से एक महल लगता था। उसके क्लिस चांदी के थे जो दिन की रोशनी में चमक रहे थे। डाकू ने हवेली के दरवाजे पर जाकर अपना नाम बताया और कहा कि वो ताजर जैद से मिलने आया है। पहरेदार ने अपने आंखों को जाकर डाकू का पैगाम दिया। जैद ने उसे बुला लिया। नाग, जो कि एक कबूतर की शक्ल में जैद के महल की बुर्जी पर बैठा था, अब एक छोटी सी चिड़िया बनकर नीचे उतर आया। उसने कोशिश की कि वो महल के अंदर दाखिल हो जाए, लेकिन दरवाजे इस तरह बंद थे कि वो अंदर ना जा सका। बहरहाल वो बाहर ही एक बारादरी की छत पर बैठकर डाकू के बाहर निकलने का इंतजार करने लगा। डाकू ने अंदर जाकर जैद को सलाम किया। ये करोड़पति ताजर उधेड़ उम्र का आदमी था जिसकी दाढ़ी में सफ़ेद बाल आने शुरू हो गए थे। ताजर ने डाकू को पहचान लिया और जान लिया कि ये सुल्तान ही का आदमी है। डाकू ने अपना तारुफ करवाया। ताजर ने एक आंख टेढ़ी करके डाकू को देखा और कहा, तुम्हारे सरदार ने क्या पैगाम भेजा है? डाकू ने कहा, जनाब अली, मेरे मालिक ने कहा है कि वो अपनी चहेती कनीज़ के एवज़ 1 लाख अशरफियों से कम पर राज़ी नहीं होगा। ताजर बोला, क्या ये उनका आखिरी फैसला है? जी हाँ, उन्होंने मुझे यही कहलवा कर भेजा है। ताजर कुछ देर सर झुकाए गौर करता रहा, फिर उसने अपनी मूँछों पर हाथ फेर कर कहा, ठीक है, तुम्हें रकम मिल जाएगी। हम उस कनीज़ को किसी हालत में भी अपने से अलग करना पसंद नहीं करते। उसके साथ ही ताजर ने ताली बजाई। एक बूढ़ा मुलाजिम लंबा सा चोगा पहने अंदर आया और सर झुकाकर बोला, हुक्म मेरे आका। ताजर ने कहा, इस शख्स को इसी वक्त 1 लाख अशरफियों की थैली अदा कर दी जाए। जो हुक्म मेरे आका। बूढ़ा मुलाजिम अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद वापस आया तो उसके हाथ में 1 लाख अशरफी की थैली पकड़ी थी। डाकू ने 1 लाख अशरफी की थैली देखी तो उसकी आंखें खुशी से चमकने लगी। उसे यकीन था कि सरदारों से बहुत इनाम देगा। वो 1 लाख अशरफी की थैली लेकर ताजर जैद की हवेली से बाहर निकला। उसके बाद जब ऊपर से नाग ने देखा कि डाकू अकेला ही बाहर आया तो वो समझ गया कि नाजमा अंदर ताजर के महल में होगी। बस अब उसके लिए अंदर जाना आसान था। वो बारादरी से उड़कर बाग के एक दरख्त पर आकर बैठ गया और सोचने लगा कि उस महल के अंदर किस भेस में जाए। काफ़ी देर सोचने के बाद उस दरख्त से उड़कर झाड़ियों के पीछे आकर बैठ गया। शायद ज़िंदगी में पहली बार उसने एक बूढ़ी औरत का रूप बदल लिया और उसके गले में सब्ज़ मनकों की मालाएँ थीं। सर पर अरबी रुमाल बंधा था। वो शक्लो सूरत से खाना बदोश नजूमी औरत लगती थी जो किस्मत का हाल बताते हैं। नाग ने देखा कि बाग में एक बारादरी के पास एक औरत फूल चुन चुन कर टोकरी में रख रही है। नाग उसी के पास जाकर मुस्कुराया, बेटी, तुम्हारी किस्मत में बड़ी दौलत लिखी है, तुम्हें तो किसी बादशाह के महल में राज करना चाहिए। उस औरत ने अपने सामने एक खाना बदोश नजूमी औरत को देखा तो टोकरी ज़मीन पर रखकर उसके करीब आ गई। अम्मा, मेरी किस्मत का कुछ और हाल बताओ। मैं तो यहाँ एक बांदी बनकर ज़िंदगी के दिन पूरे कर रही हूँ। मेरी तकदीर में बादशाह के महल में भला राज करना कहाँ? नाग ने उसका हाथ देकर मुस्कुराते हुए कहा, मेरी बच्ची, घबराओ नहीं, तुम्हारे हालात बड़ी जल्दी पलटने वाले हैं। यहाँ एक किसी दूसरे मुल्क का शहजादा आएगा, वो तुम्हें पसंद करके यहाँ से ले जाएगा। फिर वो अपने मुल्क में जाकर तुमसे शादी करेगा और तुम्हें अपनी मलिका बनाकर राज करेगा। नाग की चकनी चपड़ी बातों से मालन उसकी गर्विदा हो गई। नाग ने बातों बातों में उससे महल के सारे राज मालूम कर लिए, मगर वो ये न बता सकी कि उस मालिक ताजर जैद ने जो नई कनीज़ नाज़िमा ख़रीदी है वो कहाँ है। ऐसा लगता था कि ताजर ने नाज़िमा को किसी खुफिया जगह पर रखा है ताकि किसी को मालूम ना हो। खुदा जाने ये करोड़पति ताजर नाज़िमा की मौजूदगी को किस लिए राज रखना चाहता था। नाग ने सोचा कि किसी तरीके से इस महल के अंदर रहने का कोई बंदोबस्त करना चाहिए ताकि वहाँ रहकर नाज़िमा का खोज लगा सके। उसने मालन के सर पर हाथ रखकर कहा, बेटी, अब मैं जाती हूँ, फिर आऊँगी। मालन ने कहा, अम्मा, तुम कहाँ रहती हो? नाग बोला, बेटी, मैं इस शहर में परदेसी हूँ। यहाँ भला मेरा कौन है जिसके पास जाकर ठहरूँ? बस एक सराय की कोठरी में पड़ी हूँ। नाग ने जानबूझकर ये कहा था कि मालन का शौक़ तेज़ हो और वो उसे अपने यहाँ रहने की दावत दे दे। ऐसा ही हुआ। मालन बोली, अम्मा, तुम मेरे घर में क्यों नहीं आ जाती? मैं महल के अंदर ही बाग के कोने वाले मकान में अकेली रहती हूँ। यही तो नाग चाहता था। बोला, नहीं बेटी, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें तकलीफ़ दूँ। मेरा क्या है, आज यहाँ कल वहाँ, जहाँ सिंह समाएगा पड़ रहूँगी। मालन ने कहा, नहीं अम्मा, मुझे बड़ी खुशी होगी अगर तुम मेरे यहाँ ठहरो, और फिर जब वो शहज़ादा आएगा तो तुम मुझे खबर भी तो कर दोगी। हाँ, ये तो है। अच्छा, तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे यहाँ ठहर जाती हूँ। नाग ने मालन के घर महल के अंदर बाग में ठिकाना बना लिया। शाम को आकर उसने अंबर और मारिया को सारी बात बयान कर दी और कहा कि वो ताजर जैद की हवेली में नाज़िमा को नहीं देख रहा।
अंबर ने ताज्जुब से कहा, फिर वो कहाँ चली गई? मारिया बोली, मेरा ख्याल है कि ताजिर जैद ने उसे किसी दूसरे ताजिर को तोहफे के तौर पर न पेश कर दिया हो। ये अरब ताजिर अक्सर ऐसा करते रहते हैं। अंबर बोला, अब इसका कैसे पता चलाया जाए? नाग ने कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि नाज़मा का सुराग लग जाए। अंबर ने कहा, तुम किसी तरह ताजिर जैद तक रसाई हासिल करो, उसकी दोस्ती हासिल करने की कोशिश करो। इस महल में सिर्फ वही एक ऐसा आदमी है कि जिससे तुम्हें नाज़मा का खोज मिल सकता है। नाग बोला, मैं सुबह से पहले यही कोशिश करूंगा। मेरे लिए ताजिर जैद तक पहुंचना कोई मुश्किल इतनी बात भी नहीं है। मैं एक नजूमी औरत के रूप में वहाँ रह रही हूँ और ये अमीर लोग नजूमियों की तलाश में रहते हैं ताकि उन्हें अपनी किस्मत और दौलत के बारे में हालात मालूम होते रहें। मारिया ने कहा, अगर मेरी ज़रूरत महसूस हो तो मैं भी हाजिर हूँ। नाग मुस्कुराकर बोला, नहीं बहन, अभी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा वक्त आया तो मैं सबसे पहले तुम्हें अपने साथ ले चलूँगा। रात शुरू हुई तो नाग ने एक बार फिर नजूमी औरत का भेस बदला और ताजिर जैद के बाग की जानिब रवाना हो गया। मालिन उसकी राह देख रही थी। अम्मा, तुम कहाँ चली गई थी? मैं तो परेशान हो गई थी। नाग ने बूढ़ी औरतों की आवाज़ में खांसते हुए कहा, अरे बेटी, भला मैं कहाँ जाऊँगी? बस सराय में ही एक औरत पकड़कर बैठ गई थी। किस्मत का हाल पूछने लगी तो ये वक्त आ गया। उसके बाद उन्होंने खाना खाया और नाग ने ताजिर जैद के बारे में बातें शुरू कर दी। नाग को मालूम हुआ कि ताजिर जैद नजूमियों को बहुत पसंद करता है और उनकी तलाश में रहता है। उसने मालन से कहा कि वो उसके बारे में ताजिर जैद से बात करे। मैं उसे आने वाली ज़िंदगी के बारे में सारे हालात बता दूंगी। मालन ने कहा, आजकल मेरा आका एक बात के लिए बहुत परेशान है। वो कौन सी परेशानी है तुम्हारे आका को? नाग शौक से पूछा। मालन कहने लगी, मेरे आका का एक ही लड़का है जो 10 बरस का है। उसको एक बीमारी लग गई है जिसने आका को बेहद परेशान कर रखा है। कौन सी बीमारी, मुझे तो बताओ। मालन बोली, अजीब किस्म की बीमारी है। वो रोज़ बरोज़ सूखता जा रहा है। जो कुछ खाता है उसको ज़रा नहीं लगता। चेहरा जर्द हो रहा है, आंखें अंदर को धंसने लगी हैं। नाग ने कहा, आखिर हकीम लोग उसका इलाज क्यों नहीं करते? मालन ने कहा, हकीम लोग कहते हैं कि इस लड़के को हर तीसरे रोज़ रात को अंधेरे में कोई जहरीला सांप आकर सूंघ जाता है, जिसकी वजह से ये कमज़ोर होता जा रहा है। नाग की आंखें चमकने लगीं। ताजिर जैद तक पहुंचने का बड़ा अच्छा मौका उसे मिलने वाला था। उसने कहा, लोग उस सांप को मारते क्यों नहीं? सारी सारी रात पहरा दिया जाता है, मगर फिर भी खुदा जाने कहाँ से सांप आकर उसे सूंघ जाता है। हकीम लोग कहते हैं कि ये ऐसा ताकतवर सांप है कि अगर ये दूर किसी जगह लड़के से की तरफ मुंह करके भी सांस ले, अपनी तरफ खींचे तो लड़के पर असर हो जाता है। नाग मुस्कुराया, अगर मैं उसका इलाज कर दूं तो तुम्हारा आका मुझे इनाम में क्या देगा? मालन तो खुशी से झूम उठी। अम्मा, अगर तुम मेरे आका के बेटे को ठीक कर दो तो वो तुम्हें मुंह मांगा इनाम देगा। नाग बोला, तो चलो मुझे उसके पास ले चलो। मालन ने कहा, ऐसे नहीं, तुम मुझे सुबह इससे बात कर लेने दो। दूसरे दिन मालन ने किसी तरीके से अपने आका से बात की तो वो कहने लगा, लाखों रुपए अपने बच्चे के इलाज पर खर्च कर चुका हूँ। कोई सपेरा, कोई हकीम, कोई सन्यासी ऐसा नहीं जिसे दिखाया ना हो। उन लोगों से इलाज ना हो सका तो ये तुम्हारी खाना बदोश नजूमी औरत भला क्या इलाज करेगी? मालन ने हाथ बांध कर कहा, का मुझे यकीन है कि हमारे शहजादे का इलाज उसी नजूमी औरत के पास ही है। वो ज़रूर बच्चे को अच्छा कर देगी। आपने जहाँ इतने लोगों से इलाज करवाए हैं वहाँ इस औरत को भी आजमा कर देख लें। ताजिर जैद ने सर हिलाकर कहा, अच्छा ले आओ उसे भी। मालन खुशी खुशी नाग के पास आई। अम्मा, आका ने तुम्हें बुलाया है, देखना अब मेरी बात की लाज रखना। मैंने उसके सामने तुम्हारी तारीफ़ों के बड़े पुल बांधे हैं। नाग हंसा, घबराओ नहीं, तुम्हारी तारीफ़ों के सारे पुल सलामत रहेंगे। और नाग बूढ़ी औरत के रूप में ताजिर के पास पहुंच गया। ताजिर उस वक्त अपनी ख्वाबगाह में बच्चे के पलंग के पास चांदी की कुर्सी पर बैठा था। 2 कनीज़ें बच्चे को पंखा झल रही थी। ताजिर जैद ने नाग की तरफ बेनियाजी से देखा, जैसे उसे यकीन हो कि ये बूढ़ी औरत उसके बच्चे को हरगिज़ अच्छा ना कर सकेगी। नाग ने आगे बढ़कर पलंग पर लेटे हुए बच्चे को देखा। वो बहुत कमज़ोर हो गया था। नाग ने उसकी आंखों को देखा तो समझ गया कि इसको सांप आकर सूंघ जाता है। लड़के के करीब से ऐसी बू आ रही थी जो सांप की बू थी और जिसे सिर्फ नाग ही महसूस कर सकता था। उसने ताजिर की तरफ देखकर कहा, फिक्र की कोई बात नहीं, आपका बेटा अच्छा हो जाएगा। ताजिर ने नजूमी खाना बदोश औरत की तरफ देखकर कहा, मगर कैसे अच्छा होगा? नाग ने कहा, मैं इसे अच्छा करूंगी। क्या तुम मेरे बच्चे की बीमारी को समझ गई हो बुढ़ी औरत? नाग को ताजिर जैद का ये अंदाज अच्छा न लगा। फिर भी चूंकि उसकी दोस्ती हासिल करना ज़रूरी था और नाग इसी काम के लिए वहाँ आया था, इसलिए सब्र से पी गया। कहने लगा, आपके बच्चे को सांप के सूंघने की बीमारी है। ताजिर ने सर झुकाकर फिर उठाया और बोला, तुमने कोई नई बात नहीं बयान की, ये मर्द तो सब हकीमों ने बता रखा है। सवाल यह है कि इस बीमारी का इलाज क्या है? नाग कहने लगा, इलाज मेरे पास है। ताजिर जैद को अब कुछ उम्मीद हो गई थी कि शायद ये बूढ़ी औरत उसके बच्चे को ठीक कर दे। बोला, अगर तुम मेरे बच्चे को अच्छा कर दो तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। नाग ने कहा, एक बार फिर सोच लो, क्या तुम अपने वादे पर कायम रहोगे? ताजिर ने पूछा, क्या मतलब? नाग ने कहा, मतलब ये कि मैंने जो इनाम आपसे मांगा वो आप मुझे देंगे या वादे से फिर जाएंगे? ताजिर कहने लगा, मैं खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर कहता हूँ
کہ اگر میرا بیٹا تندرست ہو گیا تو تم جو مانگو گی اور وہ میرے اختیار میں ہوا تو میں ضرور تمہیں دے دوں گا۔ ناگ نے کہا ٹھیک ہے، میں آج رات بچے کا علاج کروں گی۔ رات کو ناگ نے مریض لڑکے کے پلنگ کے ارد گرد ایک چاندی کی چوکی رکھ دی، اس پر دودھ کا ایک پیالہ رکھ دیا، خود ایک طرف بیٹھ گیا۔ پاس ہی اس نے لڑکے کے باپ تاجر زید کو بھی بٹھا لیا۔ جب آدھی رات گزر گئی تو ناگ نے محسوس کیا کہ سانپ وہاں نہیں آتا، بلکہ دور سے کسی جگہ پر سے اسے سونگھ کر چلا جاتا ہے۔ اب ضروری ہو گیا تھا کہ سانپ کو وہاں بلایا جائے۔ یہ کام ناگ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ اس نے رات کے ٹھیک 12 بجے آنکھیں بند کر کے تاجر زید کو یہ تاثر دیا کہ جیسے وہ کوئی جادو کا منتر پڑھ رہا ہے۔ اصل میں وہ سانپوں کی زبان میں اس خاص سانپ کو آواز دے رہا تھا جو تاجر کے بیٹے کو آ کر سونگھ جاتا تھا۔ وہ سانپ دمشق کے صحرا کا ایک بڑا خطرناک سانپ تھا جس کے سر پر لمبے بال تھے۔ یہ سانپ حویلی کے باغ میں ایک جگہ گلاب کی جھاڑیوں میں بیٹھا تھا اور اپنے شکار کے پاس جانے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے اسے ناگ دیوتا کی سرگوشیاں سنائی دے رہی ہوں۔ سانپ ایک دم سے ہوشیار ہو گیا۔ اس نے گردن اوپر اٹھائی، پھن پھیلایا اور زبان بار بار باہر نکال کر ناگ دیوتا کی آواز سننے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے سر کے بال بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ ناگ دیوتا کی آواز صاف آ رہی تھی۔ سانپ جدھر سے آواز آ رہی تھی ادھر کو چل پڑا۔ یہ آواز اسے اسی کمرے میں سے لے گئی جہاں اس کا شکار پلنگ پر نیم بے ہوش لیٹا تھا۔ پلنگ کے پاس ہی چاندی کی چوکی پر دودھ کا پیالہ رکھا تھا۔ قریب ہی ناگ نجومی عورت کے روپ میں اور لڑکے کا باپ تاجر زید بیٹھے تھے۔ تاجر زید نے جو ہی ایک سبز اور سیاہ رنگ کے بھیانک سر والے سانپ کو کمرے میں آتے دیکھا تو وہ خوف سے پرے ہٹ گیا۔ ناگ نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر واپس بٹھا دیا۔ سانپ سانپ! ایک غلام چلاتا ہوا آیا اور ایک خنجر نکال کر سانپ کو مارنے لگا کہ ناگ نے ہاتھ ہلا کر کہا خبردار، اسے مارنا مت، اسے آنے دو۔ سانپ قالین پر رینگتا ہوا بڑے ادب سے آگے آ کر کنڈلی مار کر بیٹھا اور پھر گردن اس نے ناگ کی طرف منہ کر کے قالین کے ساتھ لگا دی۔ تاجر زید کانپ رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں سانپ اس کو ڈس نہ لے۔ کنیزیں پرے ہٹ گئی تھی۔ غلام دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے تھے، تلواریں اور خنجر ان کے ہاتھوں میں تھے۔ ایک غلام نے کمان میں تیر چڑھا کر سانپ کا نشانہ باندھ رکھا تھا کہ اگر سانپ اس کے آقا پر حملہ کر دے تو وہ سانپ پر تیر چلا کر اسے ہلاک کر دے۔ ناگ نے سانپ سے کہا کیا تم ہی اس بچے کو آ کر سونگا کرتے تھے؟ سانپ نے ادب سے کہا ہاں میرے دیوتا۔ ناگ کی بات تاجر سن سکتا تھا مگر سانپ کی آواز نہیں سن سکتا تھا۔ ناگ بولا اچھا اب سن لو، خبردار آگے سے یہاں قدم نہ رکھنا اور اس بچے کو ہرگز ہرگز تنگ نہ کرنا۔ سانپ بولا آپ کا حکم سر آنکھوں پر آقا۔ ناگ نے تاجر زید سے کہا سانپ نے کہہ دیا ہے کہ وہ کبھی اس گھر میں نہیں آئے گا، آپ کے بچے کو آئندہ کبھی سونگنے کی جرت نہیں کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ میں چاہتی ہوں کہ بچے کے اندر سے اپنا بھیجا ہوا زہر باہر کھینچ لے۔ اس کے لیے میں ابھی سانپ کو حکم دینے لگی ہوں کہ وہ بچے کے جسم سے اپنا زہر کھینچ لے۔ اس کے لیے سانپ بچے کی ٹانگ پر منہ رکھ کر سانس واپس کھینچے گا۔ آپ کو ڈرنا نہیں، سانپ میرے حکم کے بغیر کوئی حرکت نہیں کر سکتا۔ کیا آپ کو منظور ہے؟ تاجر نے گھبرا کر کہا کہیں میرے بچے کو سانپ ڈس تو نہ لے گا۔ ناگ ہنس پڑا یہ تو آپ وہم بھی نہ کریں، سانپ صرف بچے کی ٹانگ پر منہ رکھ کر سانس واپس کھینچے گا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے بچے کو بھی ہوش آ جائے گا اور صبح تک اس کا رنگ جو ابھی زرد ہے سرخ ہو جائے گا۔ تاجر زید مجبور ہو گیا کہ وہ ناگ کو اجازت دے دے کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو پوری طرح تندرست دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا میں اجازت دیتا ہوں۔ اب ایک خوفناک منظر شروع ہوا۔ کنیزوں اور غلاموں کے چہرے سہم گئے۔ ناگ نے سانپ کی طرف ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے کہا چلو بچے کے جسم سے اپنا زہر کھینچ لو۔ سانپ نے سر جھکا کر پلنگ کی طرف رینگنا شروع کر دیا۔ پلنگ کے پاس آ کر وہ رک گیا۔ اس نے گردن اٹھا کر پھن پھیلایا اور پھر اپنا منہ بچے کی ننگی پنڈلی پر رکھ دیا۔ اس وقت تاجر اور دوسرے غلام اور کنیزوں کے اپنے سانس رک سے گئے۔ تاجر زید کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ سانپ نے تھوڑی دیر کے بعد منہ اوپر اٹھایا، پھر آہستہ آہستہ رینگتا ہوا واپس ناگ کے سامنے آ کر گردن چکا دی۔ ناگ نے کہا چلو اب اپنے حصے کا دودھ پی کر یہاں سے رفو چکر ہو جاؤ۔ سانپ نے چاندنی کی چوکی پر رکھے پیالے میں سے دودھ پینا شروع کر دیا۔ دودھ پی کر اس نے آخری بار سر جھکا کر ناگ کو سلام کیا اور قالین پر رینگتا ہوا واپس نکل گیا۔ سانپ کے جانے کے بعد ناگ نے کہا بس اب یہ سانپ کبھی ادھر کا رخ نہیں کرے گا۔ تاجر زید نے اپنے بچے کو جھک کر دیکھا، اسے ہوش آ چکا تھا۔ اس نے اپنی کمزور آنکھوں سے باپ کو دیکھا اور آہستہ سے مسکرا کر کہا بابا جان میرے بچے۔ تاجر زید نے بچے کو چوم لیا۔ اس نے اپنے بچے کو ایک لمبی مدت کے بعد مسکراتے دیکھا تھا۔ اب اس نے ناگ سے کہا میں اپنا وعدہ پورا کروں گا میری بہن، مانگو کیا مانگتی ہو، اگر میرے اختیار میں ہوا تو میں تمہارے سوال کو پورا کروں گا۔ ناگ نے کہا مجھے اپنی کنیز نازمہ بخش دو، بس یہی میری خواہش ہے اور یہی میرا سوال ہے۔ تاجر زید نے یہ سوال سن کر اپنا سر پکڑ لیا۔ ناگ نے کہا مجھے امید ہے کہ تم اپنا وعدہ مردوں کی طرح نبھاؤ گے۔ تاجر زید نے سر اٹھا کر کہا میری بہن کاش تم چند روز پہلے مجھ سے سوال کرتی، اس وقت یہ کنیز میرے گھر میں ہی تھی، لیکن اب تو میں اسے اپنے گہرے دوست کو دے چکا ہوں۔ تم میری حویلی کی دوسری کوئی بھی کنیز اپنی خدمت کے لیے لے جا سکتی ہو۔
नाग खामोश हो गया। ताजर जैद झूठ नहीं बोल रहा था, यकीनन नाज़मा उसके घर में नहीं थी। मालन ने भी उससे ख़तरे का इजहार किया था कि शायद नाज़मा हवेली में नहीं है। अब नाग क्या कर सकता था? उसने कहा, नहीं मेरे भाई, मुझे उसी कनीज़ की ज़रूरत थी। बहरहाल ये मुझे बताओ कि तुम्हारा दोस्त कहाँ रहता है, उसका नाम क्या है? मैं कोशिश करूँगी कि उस कनीज़ को मेरे हाथ फ़रोख्त कर दे। ताजर जैद ने नाग को बताया कि उसके दोस्त का नाम जब्बार है और वह दमिश्क में जैतून के तेल का कारोबार करता है। नाग वहाँ से जब्बार के घर पहुँचा। वहाँ जाकर उसे पता चला कि जब्बार के यहाँ से अली बाबा नाम का एक ताजर नाज़मा कनीज़ को ख़रीद कर ले गया है। अली बाबा वो शख्स था कि जिसके भाई की लाश डाकू सुल्तान के गार में से गायब हो गई थी। नाग वापस उड़न तशरीफ पहुँच गया। उसने अंबर और मारिया को सारे हालात बयान किए। अंबर बोला, अली बाबा की हवेली दमिश्क शहर के अंदर है। ये आदमी डाकुओं की दौलत से माला माल हुआ है। नाज़मा को उसके यहाँ से लाना मुश्किल होगा। अली बाबा को दौलत का लालच नहीं है, इसलिए वो नाज़मा को फ़रोख्त नहीं करेगा। उसे हमें वहाँ से अगवा करना पड़ेगा। नाग ने कहा, मेरा ख्याल है कि हमें एक बार कोशिश करके देख लेना चाहिए। मैं आज ही अली बाबा के यहाँ जाकर नाज़मा से मुलाकात करने की कोशिश करता हूँ। मुझे देखकर वो ज़रूर मेरे साथ भाग चलेगी। मारिया ने कहा, वो तो ठीक है, मगर नाज़मा को वहाँ से भगाएंगे कैसे? अंबर बोला, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि उसे वहाँ से अगवा करना पड़ेगा और ये कोई मुश्किल बात नहीं है। नाग, तुम ये काम नहीं कर सकते, मैं चला जाता हूँ। नाग ने कहा, भला मैं ये काम क्यों नहीं कर सकता? मैं अभी जाकर करता हूँ। अली बाबा की हवेली मैंने देखी हुई है। नाग उसी रोज़ अली बाबा की हवेली में आ गया। ये हवेली भी बड़ी थी। अली बाबा को नई नई डाकुओं की दौलत हाथ लगी थी। उसने हवेली को अंदर से बिल्कुल एक महल की तरह सजा रखा था। नाग एक ताजर बनकर अली बाबा के पास गया। अली बाबा ने उसे दीवान खाने में बिठाया और पूछा वो किस माल की तिजारत करता है। नाग ने कहा, मैं हिंदुस्तान के गर्म मसाले और खुशबुओं का कारोबार करता हूँ। अगर आपकी मर्ज़ी हो तो मेरा एक काफ़िला एक हफ़्ते के बाद दमिश्क पहुँचने वाला है। मैं उसका माल आपके पास फ़रोख्त करने को तैयार हूँ। अली बाबा समझा कि नाग कोई बहुत बड़ा ताजर है। वो उससे बड़ा मुतासिर हुआ। उसने उसी वक्त नाग को कहवा और खुश्क मेवे लाने को कहा। नाग का ख्याल था कि शायद नाज़मा ये चीज़ें लाए, मगर उसकी जगह वहाँ एक स्याह फाम मबशी खुश्क मेवों का तश्त उठाए हुए आ गया। नाग की निगाहें हवेली में नाज़मा को तलाश कर रही थी, मगर वो उसे कहीं नज़र नहीं आ रही थी। नाग ने अली बाबा पर काफ़ी असर डाल दिया और दोस्ती भी कर ली। अली बाबा ने उसे रात को खाने पर बुला लिया। नाग को उम्मीद थी कि खाने पर शायद नाज़मा से मुलाकात हो जाए। अली बाबा ने खाने पर बड़ा तकल्लुफ़ किया था। किस्म किस्म का भुना हुआ गोश्त और पुलाव पका था। कनीज़े और ग़ुलाम खाने के तश्त लिए खिदमत कर रहे थे, मगर नायला कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। अली बाबा ने नाग को दावत दी कि वो रात उसी के मकान में सोए। नाग यही चाहता था। उसने अली बाबा की ये दावत उसी वक्त कबूल कर ली, इस उम्मीद पर कि शायद रात को नाज़मा से मुलाकात हो जाए। अली बाबा से पूछना वो मुनासिब नहीं समझता था, क्योंकि हो सकता था उसको शक हो जाता कि ये शख्स उसकी कनीज़ को अगवा करने आया है। नाग को हवेली की छत पर दरिया की जानिब सुलाया गया। सोने से पहले एक बूढ़ी कनीज़ दूध और शहद लेकर नाग के पास आई। ये नाग की आखिरी उम्मीद थी। उसने बूढ़ी कनीज़ के आगे जेब से अशरफियों की थैली निकाल कर डालते हुए कहा, मेरी बहन, यह अशरफियों की थैली तुम्हारी है, मगर मुझे एक बात बताओ कि यहाँ नाज़मा नाम की भी कोई कनीज़ है? अशरफियों की थैली देखकर बूढ़ी कनीज़ की बाँछें खिल उठी। बोली, भाई, इस नाम की कोई कनीज़ यहाँ नहीं, मगर यहाँ जितनी भी कनीज़ें हैं वो अपने असली नाम से नहीं पुकारी जाती। हमारे आका ने उनके अलग अलग नाम रख छोड़े हैं और वो उन्हीं नामों से पुकारी जाती हैं। नाग बोला, अच्छा ये बताओ कि क्या कोई ऐसी कनीज़ यहाँ पर है जो बड़ी खूबसूरत हो, जिसके बाल सुनहरी और घुंघराले हों? बूढ़ी कनीज़ ने कहा, हाँ, एक कनीज़ इस हुलिये की ज़रूर है। उसे चंद रोज़ हुए मालिक ने किसी ताजर से ख़रीदा है। नाग ने खुशी से उछल कर कहा, बिल्कुल यही कनीज़ है जिसके लिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ। बूढ़ी कनीज़ ने कहा, उस कनीज़ का नाम मर्जीना है। ये नाम हमारे मालिक ने रखा है। नाग ने बूढ़ी कनीज़ की खुशामद करते हुए कहा, मेरी बहन, क्या तुम किसी तरह मुझे उस कनीज़ मर्जीना से मिला सकती हो? मैं उसकी तलाश में बड़ी दूर से आया हूँ। बस उसे उसके एक भाई का पैगाम देकर ही वापस भेज दूँगा। मैं उसे यहाँ से अगवा करने नहीं आया। तुम मुझ पर यकीन करो, और अगर तुमने मुझे मर्जीना से मिला दिया तो मैं तुम्हें इतनी ही अशरफियाँ और दूँगा। सोने की और अशरफियाँ मिलने का सुनकर बूढ़ी कनीज़ लालच में आ गई और मर्जीना को वहाँ भेजने का वादा करके चली गई। उसने जाते ही मर्जीना से बात की और नाग का हुलिया भी बताया। वो फ़ौरन भागी भागी नाग के पास छत पर आ गई। नाग ने नाज़मा को और नाज़मा ने नाग को पहचान लिया। दोनों एक दूसरे से मिलकर बेहद खुश हुए। बूढ़ी कनीज़ जा चुकी थी। नाग ने कहा, खुदा का शुक्र है तुमसे मुलाकात हो गई। मैं अंबर और मारिया तुम्हारी तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। तुम्हारे बाप का तुम्हारी जुदाई में बुरा हाल है। नाज़मा की आंखों में आंसू आ गए। मेरे बाप ने मेरे लिए बड़े गम उठाए हैं। मैं अब जल्दी उसके पास चली जाऊंगी। नाग ने कहा, क्या तुम इस वक्त मेरे साथ नहीं चल सकती? हमारी उड़न तश्तरी शहर से बाहर सहरा में एक जगह रुकी हुई है। हम सिर्फ तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। मर्जीना यानी नाज़मा ने कहा।
अली बाबा के मुझ पर बड़े एहसान हैं। उसने मेरे साथ बड़ा अच्छा सलूक किया है और मुझे अपनी बेटियों की तरह यहाँ रखा हुआ है। ये एक बड़ा नेक आदमी है। इसको डाकुओं के गार से दौलत मिल गई है, जिसमें से इसने आधा हिस्सा खैरात कर दिया है। नाग बोला, इन बातों का तुम्हारे यहाँ जाने से क्या ताल्लुक है नाज़मा? नाज़मा कहने लगी, बात असल में यह है कि डाकू ने अली बाबा का घर देख लिया है। वो आज या कल यहाँ हमला करने वाले हैं। मेरा ख्याल है कि कोई ना कोई भेस बदल कर यहाँ आएंगे। मैं इस कड़े वक्त में अली बाबा का साथ नहीं छोड़ सकती। तुम मुझे 2-4 रोज़ की मोहलत दे दो, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ यहाँ से चली जाऊँगी। बल्कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आका अली बाबा खुद मुझे तुम्हारे साथ जाने की इजाज़त दे देगा। नाग बोला, ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। हमारी उड़न तश्तरी दरिया के दूसरी तरफ नखलिस्तान में दाएं तरफ जैतून के दरख्तों के झुंड में खड़ी है। फिक्र न करो, मैं बहुत जल्द वहाँ पहुँच जाऊँगी। वैसे मैं भी 4 रोज़ बाद यहाँ आकर तुम्हारा पता करता जाऊँगा। ठीक है, अच्छा मैं जाती हूँ अब। नाज़मा चली गई। रात अली बाबा की हवेली में बसर करने के बाद अगले रोज़ नाग ने उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और माल फरोख्त करने का वादा करके वहाँ से सीधा अंबर और मारिया के पास आ गया और उन्हें सारी बात सुनाई। दूसरे रोज़, जैसा कि आप अली बाबा की कहानी में पढ़ चुके हैं, डाकुओं का सरदार सुल्तान डाकू एक ताजर के भेस में अपने 40 चोरों के साथ अली बाबा के घर पर उतरा। उसने उन चोरों को बड़े बड़े तेल के खाली कुपों में छुपा रखा था। फिर रात को मर्जीना को जैतून के तेल की ज़रूरत पड़ गई। वो तेल के कुपे में से तेल निकालने के लिए गई तो उसे पता चला कि अंदर तो डाकू छुपे हुए हैं। बस फिर ये कहानी में जिस तरह बयान किया गया, मर्जीना ने सारे के सारे चोरों को कुपों के अंदर ही हलाक कर दिया। उसके बाद उसने डाकुओं के सरदार को भी मार डाला, हलाक कर डाला। 7 रोज़ बाद नाग ने फिर नाज़मा से मुलाकात की तो वो अली बाबा से इजाज़त लेकर उसके साथ रवाना हो गई। अली बाबा ने मर्जीना को आज़ाद कर दिया था। अंबर और मारिया बड़े खुश हुए। उन्होंने नाज़मा को साथ लिया और उड़न तश्तरी फ़ज़ा की बुलंदियों में उठ गई। दिन भर के सफ़र के बाद उड़न तश्तरी वापस अंताकिया पहुँच गई, जहाँ अंबर ने नाज़मा को उसके बाप के हवाले किया। वो बेहद खुश हुआ। बेटी को देखकर उसके तन में फिर से जान आ गई। उन्होंने 1 हफ्ता अंताकिया शहर में नाज़मा के घर में क़याम किया और फिर उनसे रुखसत होकर उड़न तश्तरी पर सवार अपने सफ़र पर रवाना हो गए। उनकी कोई मंजिल नहीं थी। उड़न तश्तरी आसमान की बुलंदियों पर उड़ी चली जा रही थी। ये इस कदर ऊंची थी कि नीचे से लोगों को दिखाई नहीं देती थी। 3 रोज़ और 3 रातें सफ़र करने के बाद चौथे रोज़ अंबर उड़न तश्तरी को ज़मीन की तरफ ले आया। ज़मीन की तरफ आते हुए उन्होंने महसूस किया कि स्क्रीन पर तेज़ रोशनी उभर रही है। अंबर ने नाग की तरफ देखा, ये रोशनी कैसी है नाग? मारिया भी स्क्रीन को तकने लगी। रोशनी एक बादल के छोटे से गोले से निकल रही थी। फिर उनकी उड़न तश्तरी को एक धचका लगा और मारिया गिरते गिरते बची। अंबर ने कहा, ऊपर ले चलो। नाग ने बटन दबाया और उड़न तश्तरी एकदम फ़ज़ा में ऊपर ही ऊपर बुलंद होती चली गई। रोशनी बराबर उनका पीछा कर रही थी। वो समझ नहीं सके थे कि ये रोशनी कहाँ से आ रही है। उड़न तश्तरी आसमान पर इतनी ऊंची चली गई थी कि नीचे ज़मीन धुंधली नजर आने लगी थी। नाग ने रडार को देखते हुए कहा, आखिर ये रोशनी कहाँ से आ सकती है? मारिया कहने लगी, मेरा ख्याल है कि जिन लोगों की उड़न तश्तरी पर हम सवार हैं और सैरें करते फिर रहे हैं, वही लोग हैं और हम पर हमला कर रहे हैं। अंबर ने कहा, मारिया का ख्याल ठीक लगता है, हमें अपना बचाव करना होगा, क्योंकि अगर उड़न तश्तरी को दुश्मन ने तबाह कर दिया तो तुम लोग हलाक हो सकते हो। नाग बोला, हमें फ़ौरन पैराशूट बांध लेने चाहिए। उन्होंने उसी वक्त पैराशूट बांध लिए। उड़न तश्तरी आगे ही आगे जा रही थी। रोशनी ज़्यादा चुंधिया देने वाली हो गई थी। अचानक एक धमाका हुआ। एक तेज़ नीली शुआ बादलों में से निकलकर उड़न तश्तरी के पहलू में लगी। उसके साथ ही उड़न तश्तरी का एक हिस्सा टूटकर अलग हुआ और ज़मीन की तरफ गिरने लगा। हवा तेज़ी से अंदर दाखिल हुई और उड़न तश्तरी एक तरफ झुककर ज़मीन की तरफ गिरने लगी। अंबर ने चिल्लाकर कहा, कूद जाओ बारी बारी। उसके साथ ही अंबर ने छलांग बाहर लगा दी। उसके बाद मारिया ने छलांग लगा दी। नाग ने छलांग लगाई तो उसके पैराशूट की रस्सी उड़न तश्तरी में उलझ गई। वो उड़न तश्तरी के साथ लटकते हुए नीचे जाने लगा। नाग ने हौसला न हारा। उसे याद आ गया कि उसकी जेब में चाकू है। उसने बड़ी कोशिश के बाद जेब से चाकू निकालकर रस्सी को काट दिया। रस्सी की कटते ही वो ज़मीन की तरफ हवा में गिरना शुरू हो गया। इस अरसे में वो मारिया और अंबर से काफ़ी आगे निकल चुका था, क्योंकि उड़न तश्तरी की रफ्तार काफ़ी तेज़ थी। थोड़ी देर बाद इन नाग को एक झटका लगा और पैराशूट खुल गया। नाग आहिस्ता आहिस्ता फूले हुए पैराशूट के साथ ज़मीन की तरफ आने लगा। उसने नीचे देखा। उसे नीचे सिवाय दरख्तों के और कुछ दिखाई न दिया। नाग ने मारिया और अंबर के बारे में सोचना शुरू कर दिया कि वो खुदा जाने किस जगह उतरे होंगे। इतना नाग को मालूम था कि वो काफ़ी आगे निकल आया है। उड़न तश्तरी के टुकड़े खुदा जाने किस जगह गिरकर तबाह हो चुके थे। नाग अपनी किस्मत पर मुस्कुराया। एक बार फिर उन तीनों में जुदाई पड़ गई थी। पैराशूट आहिस्ता आहिस्ता हवा में नीचे उतर रहा था। नाग को ज़मीन पर आते हुए काफ़ी देर हो गई, क्योंकि वो काफ़ी बुलंदी से गिरा था। आधे रास्ते में ही नाग को बादलों ने घेर लिया था। वो काफ़ी ऊपर से बादलों में बिजली को चमकते हुए देख रहा था। जब वो बादलों में से गुजर कर नीचे आया तो वहाँ बारिश हो रही थी।
नाग ने देखा कि बादलों ने चारों तरफ तंबू सा तान रखा था। बारिश मूसलाधार हो रही थी। बारिश की बौछारों ने उसके कपड़े भिगो दिए। आखिर उसका पैराशूट दरख्तों में उलझ गया। नाग दरख्तों की शाखों में आकर फंस गया। खुदा का शुक्र था कि वह जख्मी न हुआ। उसने चाकू निकालकर रस्सियां काटी और दरख्त पर से ज़मीन पर उतराया। बारिश ज़ोरों शोर से हो रही थी। छाजों पानी बरस रहा था। दरख्तों के नीचे बारिश का जोर कम था। नाग ने महसूस किया कि वह एक घना जंगल है। घने मोटे मोटे तनों वाले दरख्त चारों तरफ फैले हुए थे। जिस वक्त उन्होंने उड़न तस्वीरें छलांग लगाई थी तो उस वक्त शाम हो रही थी। अब जंगल में आकर नाग को शाम के अंधेरे ने घेरना शुरू कर दिया। वो एक मोटे दरख्त के तने से लगकर बैठा और सोच रहा था कि मारिया और अंबर कहाँ उतरे होंगे। फ़ज़ा में सर्दी थी। नाग के कपड़े भी भीगे हुए थे। उसे सर्दी लगने लगी थी। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। अंधेरा भी बढ़ रहा था। रात छा गई थी। नाग ने सोचा कि आखिर वो कब तक वहाँ पड़ा रहेगा। उसको हिम्मत करके कोई ऐसी जगह तलाश करनी चाहिए जहाँ वो बारिश से महफूज रह सके और रात बसर कर सके। बस वो उठा और उसने दरख्तों में एक तरफ चलना शुरू कर दिया। जंगल में अंधेरे और बारिश में चलना मुश्किल कर दिया था। रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था। नाग दरख्तों के साथ साथ आगे बढ़ रहा था। एक बार बिजली जोर से चमकी। उसकी रोशनी में नाग ने देखा कि कुछ फासले पर एक इमारत बनी है। बिजली की तेज चमक में नाग इतना ही देख सका। बहरहाल नाग को तसल्ली हुई कि उसे एक ठिकाना तो मिल गया जहां वो बारिश से बच सकेगा। उसने मकान की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। अब वो इंतजार कर रहा था कि बिजली दूसरी बार चमके तो वो रास्ता देखे। बादल गरज रहे थे। इतने में कड़ाका हुआ और बिजली ने जंगल को रोशन कर दिया। तेज रोशनी एक पल के लिए जंगल को चकाचौंध कर गई। उस रोशनी में नाग ने देखा कि मकान बिल्कुल सामने ही दरख्तों में घिरा हुआ था। नाग ने जल्दी जल्दी उस मकान की तरफ चलना शुरू कर दिया। वो मकान के पास आकर रुक गया और नजरें उठाकर देखा। बारिश और अंधेरे में बिजली की हल्की हल्की चमक में वो इतना ही देख सका कि मकान की इमारत बहुत पुरानी है। वो किसी पुराने मंदिर से मिलती जुलती थी। नाग को यह भी मालूम नहीं था कि वो किस मुल्क में है और किस शहर के करीब है। बारिश और सर्दी से बचने के लिए नाग एकदम से पुरानी इमारत में दाखिल हो गया। अंदर अंधेरा था। नाग इमारत की ड्योढ़ी में खड़ा होकर जायजा लेने लगा। उसकी जेब में लाइटर पड़ा रह गया था। उसने लाइटर जलाकर देखा। ड्योढ़ी खाली थी। फर्श के पत्थर उखड़े हुए थे। एक तरफ दीवार में दरवाजा था जिसके कवाड़ गायब थे। नाग उस दरवाजे में से गुजरकर दूसरी तरफ आया। वहां एक कुशादा दलान था जिसके दरमियान में पत्थर जोड़कर एक चबूतरा सा बना दिया गया था। नाग आगे बढ़ा तो दीवार में एक बुत बना था। नाग ने लाइटर की रोशनी में बुत के करीब जाकर देखा। यह किसी हसीन औरत का बुत था, मगर उसका एक बाजू टूटा हुआ था। दूसरे बाजू में एक थाली पकड़ी थी जिसमें एक छोटा सा हाथी तराशा गया था। नाग समझ गया कि यह कोई पुराना मंदिर है जो अब उजड़ चुका है। नाग ने इधर उधर देखा। एक कोने में कुछ लकड़ियां पड़ी थी। नाग ने लकड़ियों को उठाकर एक तरफ दीवार के आगे रखा और लाइटर से आग जलाई। आग की गर्मी में उसने बारी बारी अपने सारे कपड़े सुखाए। खुद भी आग तापकर जिस्म को गर्म किया और अब अंबर और मारिया के बारे में सोचने लगा। वो बहुत थक गया था। उसे नींद आ गई और वो सो गया। जब वो सोकर उठा तो उसने महसूस किया कि मंदिर के बाहर जंगल में बारिश थम चुकी है, मगर रात अभी वैसी ही अंधेरी थी। अभी रात का अंधेरा वैसे ही चारों तरफ छाया हुआ था, जिसे गहरे बादलों ने और ज्यादा गंभीर बना दिया था। नाग ने करवट बदली और एक बार फिर सो गया। अभी उसकी आंख लगी थी कि अचानक उसे खटका सा महसूस हुआ। नाग ने उठकर चारों तरफ अंधेरे में देखने की कोशिश की। आग बुझ चुकी थी। अंगारे राख में दबे हुए थे। नाग ने लाइटर न जलाया, इसलिए कि किसी आने वाले को अपनी मौजूदगी का वो एहसास नहीं दिलाना चाहता था। नाग ने अब कुछ आवाज़ें सुनी। ऐसे लगा जैसे बाहर कुछ लोग मंदिर के दरवाजे पर घोड़ों से उतरे हों और बातें कर रहे हों। नाग जल्दी से उठकर अंधेरे में दीवार की ओट में हो गया। इतने में उसे रोशनी नजर आई जो आहिस्ता आहिस्ता अंदर आ रही थी। यूं लगता था कि किसी ने मशल हाथ में थाम रखी है। नाग ने महसूस किया कि अगर वो इंसान के रूप में वहां खड़ा रहा तो हो सकता है आने वाले उसे देख लें। उसने गहरा सांस लिया और एक छोटे से सांप का भेस बदलकर दीवार के साथ चिपक गया और पत्थरों की दर्ज में छुपकर देखने लगा कि ये आने वाले लोग कौन हैं। मशल की रोशनी अब दलान में आ चुकी थी। नाग ने देखा कि एक आदमी ने मशल हाथ में थाम रखी है और उसके पीछे पीछे दो आदमी हाथों में नंगी तलवारें लिए चले आ रहे हैं और हंस हंस कर आपस में बातें भी कर रहे हैं। मशल दीवार के साथ लगा दी गई। उस आदमी ने झुककर बुझी हुई आग को देखा और फिर उसे तलवार की नोक से कुरेदा। नीचे से अंगारे चमकने लगे। उसने चौंक कर पीछे अपने साथियों को देखा और जनूबी हिंद की जुबान में बोला, यहाँ कोई आया था। दोनों आदमी भी वहां आकर आग को तकने लगे। फिर उन्होंने मशल की रोशनी में चारों तरफ देखा। वहां कोई भी नहीं था। इतने में पीछे से एक आदमी और अंदर आया। उसके हाथ में भी तलवार थी और उसने अपने कंधे पर एक बोरी उठा रखी थी। यह शख्स मूंछों वाला बारोब आदमी था। सर पर पगड़ी बांध रखी थी। जब उसे बताया गया कि मंदिर के दलान में किसी ने आग जलाई थी तो उस मूंछों वाले ने बोरी को जमीन पर एक तरफ रखा और झुककर आग को तकने लगा। इस वीरान जंगल में कौन आ सकता है? दूसरे ने कहा, हो सकता है कोई जंगली आदमी हो राणा जी। राणा जी उस बारोब आदमी का नाम था जो उनका सरदार लगता था। राणा जी ने कहा, जंगली आदमी अव्वल तो इस जंगल में कहीं नहीं है। दूसरे जंगल के आदमी अपने झोंपड़ियों में रहते हैं। उन्हें क्या जरूरत है कि आधी रात को इस उजाड़ मंदिर में आकर आग जलाकर तापें? तो फिर कौन हो सकता है राणा जी?
कोई भी हो, जब आएगा तो उससे निपट लिया जाएगा। तुम बोरी को खोलकर राजकुमारी का मुंह तो खोलो, कहीं वो मर ही ना जाए। एक आदमी ने जल्दी से बोरी को खोला तो अंदर एक खूबसूरत नाजुक सी लड़की बेहोश पड़ी थी। उसने बड़ी कीमती साड़ी पहन रखी थी, बाल काले और लंबे थे। मशल की रोशनी में साफ लग रहा था वो किसी राजा की बेटी राजकुमारी है। राणा जी ने कहा, राजकुमारी के पांव जंजीर से बांधो, इसके आगे पानी का लोटा और फल रखो और यहाँ से जल्दी चलो, अभी हमें बहुत काम करना है। बहुत बेहतर राणा जी। राणा जी के आदमियों ने बेहोश राजकुमारी के एक पांव में लोहे का तंग कड़ा डालकर उसके साथ जंजीर लगाई और जंजीर को एक सतून के साथ बांध दिया। नाग ये सब कुछ देख रहा था। दूसरे आदमी ने बेहोश राजकुमारी के करीब पानी से भरा हुआ एक लोटा और एक टोकरी में कुछ अमरूद रख दिए। राणा बोला, बुझी हुई आग ने मुझे शक में डाल दिया है, लेकिन इससे बेहतर महफूज जगह सारे जंगल में और कोई नहीं है, और फिर ये हमारा पुराना ठिकाना है। इसलिए मैं चाहूँगा कि हमारा एक आदमी यहाँ छुप कर पहरा दे और राजकुमारी का ख्याल रखे। अगर कोई शख्स यहाँ आए तो उसे फौरन हलाक कर दिया जाए। एक साथी ने आगे बढ़कर कहा, राणा जी मैं यहाँ पहरा दूंगा। ठीक है, हम दोपहर तक वापस आने की कोशिश करेंगे। इतना कहकर राणा जी ने अपने दूसरे साथियों को इशारा किया। वो सब दलान से चले गए। फिर नाग ने दीवार के साथ चिमटे चिमटे बाहर घोड़ों के उन्होंने और फिर उनके टापों की आवाज़ें सुनी जो जंगल में दूर होते होते गुम हो गई। खुदा जाने ये लोग चोर थे, डाकू थे, बागी थे, क्या थे? नाग को कुछ मालूम नहीं था। उसे इतना ज़रूर मालूम था कि ये लोग इस राजकुमारी को किसी महल से अगवा करके ले आए हैं। राणा जी के आदमियों के जाने के बाद नाग ने दीवार से खिसकना शुरू कर दिया। वो रिंगते रिंगते उस जगह दीवार पर आ गया जहाँ राजकुमारी बेहोश पड़ी थी और एक डाकू पहरा दे रहा था। कुछ देर तक तो डाकू टहलता रहा, फिर उसने टोकरी में से एक अमरूद उठाया और उसे खाना शुरू कर दिया। खाने के बाद वो बुझी हुई आग के पास बैठ गया, राख कुरेदी और तलवार पास रखकर आग तापने लगा। ये दीवार वो थी जिस पर मशल जल रही थी। उसकी रोशनी में राजकुमारी के गले में पड़ा हुआ सोने का तावीज़ चमक रहा था। डाकू ने तावीज़ उतारने की एक दो बार कोशिश की मगर कामयाब ना हो सका। इतने में राजकुमारी को होश आ गया। उसने बड़ी बड़ी आंखें घुमाकर चारों तरफ देखा, फिर वो सहम कर बैठ गई। पहरेदार डाकू ने टूटे हुए दांत निकालकर हंसते हुए कहा, अब ज्यादा तड़पने, फड़कने और शोर मचाने की जरूरत नहीं है। तुम हमारी कैद में हो और यहाँ से तुम्हें कोई आज़ाद नहीं करा सकता। राजकुमारी के चेहरे पर खौफ की जर्दी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू आ गए। उसने गमगीन आवाज में कहा, मुझ पर तरस खाओ, मुझे मेरी राजमाता के पास पहुंचा दो, वो मेरे गम में मर जाएगी। पहरेदार ने कहका लगाया, अरे पगली, हम भी तो यही चाहते हैं कि वो तेरे गम में मर जाए, फिर तेरा ब्याह राजमंत्री से कर देंगे। तू महारानी बन जाएगी और राजमंत्री तेरे मरने के बाद राजा बनकर तख्त पर बैठ जाएगा। नाग ये सारी जुबान समझ रहा था, गोया ये एक बड़ी ज़बरदस्त साजिश की गई थी। राजमंत्री ने अपने महल की राजकुमारी को उन डाकुओं के जरिए अगवा करवा दिया था ताकि वह ज़बरदस्ती उसे शादी करके राजगद्दी पर कब्जा जमा ले। नाग को राजकुमारी की भोली भाली सूरत पर बड़ा तरस आया। वो रोते हुए हाथ जोड़कर पहरेदार डाकू से कह रही थी, भगवान के लिए मुझे महल में जाने दो, मैं राजमंत्री से ब्याह नहीं कर सकती, मैं राजमाता के पास जाऊंगी। राजमंत्री राक्षस है, उसने मेरे पिताजी को कत्ल करवा दिया, उसने मेरे बड़े भाई को कत्ल करवाया, वो कातिल है, अब वो मेरी माँ की जान के पीछे पड़ा है। डाकू ने कहका लगाकर कहा, क्या बेकार की बातें कर रही हो राजकुमारी, तुम्हें अब वही करना होगा जो हमारी और राजमंत्री की मर्जी होगी। राजमंत्री ने हमारे राणा जी से वादा किया है कि अगर हम तुम्हें अगवा करके उसकी शादी तुम्हारे साथ करवा दें और राजमाता को भी हलाक कर दें तो राजमंत्री हमारे राणा जी को अपना खजाना मंत्री बना लेगा। राजकुमारी ने कहा, भगवान के लिए मेरी माता जी पर रहम करो, उसको माफ़ कर दो। डाकू बोला, राणा जी को किसी को माफ़ करना नहीं जानता, वो एक खूनखार आदमखोर शेर है। उसने तुम्हारे बाप को खंजर से हलाक किया था, उसने तुम्हारे भाई की गर्दन उड़ाई थी और अब उसके लिए तुम्हारी बूढ़ी माँ को मारना कोई मुश्किल बात नहीं है। राजकुमारी सिसकियाँ भर कर रोने लगी। नाग से उसकी हालत देखी न जा रही थी मगर वो खामोश था। वो सारे हालात से बाखबर हो चुका था। अब वो मौका का इंतजार कर रहा था। उसने दिल में फैसला कर लिया था कि वो राजकुमारी को उन दरिंदों के चुंगल से ज़रूर छुड़ाएगा। अब वो खिसकता खिसकता उस जगह पर आ गया जहाँ पहरेदार डाकू आग के पास बैठा आग ताप रहा था। नाग छत के पत्थरों में आ गया। अब डाकू बिल्कुल उसके नीचे था। क्या वो डाकू पर छलांग लगा दे? ऐसा करना खतरनाक भी हो सकता था क्योंकि डाकू के पास उसकी तलवार पड़ी थी। अगर फर्ज किया कि नाग छत पर से डाकू के ऊपर कूद कर गिरता है तो डाकू तेजी से हाथ मारकर उसे परे फेंक देता है और फिर उससे पहले कि नाग उस पर हमला करके उसे डस ले, डाकू तलवार उठाकर पहले हमला करने में कामयाब हो जाता है और नाग के टुकड़े कर देता है। नाग ने सोचा कि हमला नीचे उतर कर करना चाहिए। बस छत पर से रिंगता दीवार पर से होता हुआ नीचे जमीन पर आ गया। मशल की रोशनी में जमीन पर हर शय साफ दिखाई दे रही थी। राजकुमारी रोने के बाद थक कर अब अपने आंसू पहुंच रही थी। अचानक उसकी नजर एक स्याह सांप पर पड़ी जो आहिस्ता आहिस्ता रेंगते हुए डाकू के पीछे से उसकी तरफ बढ़ रहा था। राजकुमारी एकदम खामोश हो गई। उसने सांप को देखकर बिल्कुल शोर न मचाया मगर उसके चेहरे पर घबराहट आ गई थी। चोर ने उसकी घबराहट को महसूस करते हुए जो ही पीछे मुड़कर देखा तो तड़प कर उठा, लेकिन इस अरसे में सांप ने उछलकर हमला कर दिया। सांप ने डाकू के पांव पर डसा और बेहद खतरनाक जहर उसके खून में शामिल कर दिया। डाकू ने तलवार उठाकर सांप पर हमला करना चाहा मगर तलवार उसके हाथ से गिर पड़ी। उसकी टांगें कांपने लगी, फिर सारा जिस्म लरजने लगा और राजकुमारी के देखते देखते वो धड़ाम से फर्श पर गिरा
اور اس کے मुंह से स्याह रंग का झाग निकलने लगा। वो थोड़ी देर तड़पा, लर्जा और फिर मर गया। ये सारा तमाशा राजकुमारी खुशी और हैरानी से देख रही थी। उसका दुश्मन उसकी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मर गया था। वो खुश हो रही थी कि आखिर भगवान ने उसकी सुन ली और एक सांप को उसकी मदद के लिए भेज दिया। सांप डाकू को हिलाक करने के बाद खामोशी से रेंगता हुआ दलान से निकल गया। राजकुमारी ने दुश्मन के हिलाक होने के बावजूद अपने आप को बेबस पाया, क्योंकि वो जंजीर में जकड़ी हुई थी। यह जंजीर मजबूत लोहे की थी और एक नाजुक बदन वाली राजकुमारी के लिए उसे तोड़कर आज़ाद होना एक नामुमकिन बात थी। उसने भगवान के आगे हाथ बांधकर दुआ की, ऐ भगवान, तूने मुझे इस मोजी से बचाया है, अब मुझे इस जंजीर से भी आज़ाद कर दे। अभी वो दुआ मांगकर फारिग हुई थी कि क्या देखती है कि एक सांवला नौजवान अंदर दाखिल हुआ और उसके करीब आकर बोला, भगवान ने तुम्हारी दुआ सुन ली और मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। राजकुमारी ने हैरानी और खुशी से नाग को देखा। ये नाग ही था जो सांप का बदन छोड़कर अब अपनी इंसानी शक्ल में उसके पास आया था। नाग ने यह जाहिर किया कि गोया उसे किसी बात की कोई खबर नहीं है। उसने फर्श पर पड़ी लाश को देखकर कहा, यह लाश किसकी है? मालूम होता है तुम्हारा दुश्मन था और भगवान ने इसे हलाक कर दिया है। राजकुमारी बोली, पहले मेरे पाँव की जंजीर तोड़ो भाई, फिर मैं तुम्हें अपनी दर्द भरी कहानी सुनाऊंगी। नाग ने एक पत्थर उठाकर जंजीर के नीचे रखा, दूसरे पत्थर से एक ही ज़रब लगाई, जंजीर टूट गई। नाग ने राजकुमारी को पानी पिलाया, फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है लड़की, तुम कौन और यहाँ ये लोग तुम्हें कहाँ से लाए हैं? अगरचे नाग को उसकी सारी कहानी की खबर थी, मगर वो ये नहीं चाहता था कि राजकुमारी को उस पर शक पड़े कि वो सारे हालात जानता है। उसने एक बार फिर राजकुमारी की जुबान से वो सारी कहानी सुनी जिसकी उसे पूरी खबर थी। कहानी सुनकर नाग ने गहरा सांस लिया और बोला, तुम्हारे भगवान ने तुम्हारी मदद के लिए पहले सांप को भेजा कि उस डाकू को हिलाक करे, फिर मुझे यहाँ भेज दिया। राजकुमारी बोली, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? नाग ने कहा, राजकुमारी कौशल्या जी, इन बातों के लिए अभी बहुत वक्त पड़ा है। सबसे पहले तो हमें यहाँ से निकलना चाहिए ताकि राणा जी के यहाँ आने से पहले पहले हम रातों रात निकल जाएं। राजकुमारी बोली, मेरा राजमहल यहाँ से 1 रात और 1 दिन के सफ़र पर है, हम पैदल वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? नाग ने कहा, पहले यहाँ से तो निकल चलें, फिर उसके बारे में भी गौर कर लेंगे। नाग राजकुमारी को लेकर मंदिर से बाहर आ गया। अपने बारे में नाग ने कुछ न बताया। रात ढलना शुरू हो गई थी। आसमान पर अभी तक गहरे स्याह बादल छाए हुए थे और खतरा था कि किसी वक्त भी बारिश शुरू हो सकती है। नाग ने राजकुमारी को साथ लिया और एक तरफ जंगल में चलना शुरू कर दिया। वो भी यही चाहता था कि राणा जी से लड़ने के बजाय सबसे पहले जितनी जल्दी हो सके राजकुमारी को वहाँ से दूर ले जाए, क्योंकि उसकी और राणा जी की लड़ाई में राजकुमारी के हलाक हो जाने का खतरा था। नाग को उस जंगल में छोड़कर अब हम जरा अंबर और मारिया की खबर लेते हैं। मारिया का पैराशूट उड़न तशरीह से गिरते ही फिजा में खुल गया था। शायद वो भी जिंदगी में पहली बार हवा में छलांग लगा रही थी। हवा में उड़ते हुए उसे बड़ा अजीब सा लग रहा था। अगर कोई आज के ज़माने में मारिया के पैराशूट को देखता तो ज़रूर हैरान होता कि ये पैराशूट बगैर हवाबाज के खुला हुआ नीचे उतरता चला आ रहा है। मारिया जिस इलाके के ऊपर आई वहाँ भी जंगल था। उसने देखा कि उसका पैराशूट एक खुली जगह की तरफ चला आ रहा है। वो बड़े आराम से नीचे उतर आई। सबसे पहला काम उसने ये किया कि पैराशूट से अपने आप को आज़ाद किया। उसकी तरकीब अंबर ने उन दोनों को समझा दी थी। मारिया जंगल में घास पर गिरी थी। वो बिल्कुल ठीक ठाक थी, उसे कोई चोट नहीं आई थी। पैराशूट फेंककर उसने जंगल का जायजा लिया। ये बड़ा घना सा जंगल था। दूर एक तरफ दरख्तों में से धुआं सा उठ रहा था, जिसका साफ यही मतलब था कि वहाँ कोई आबादी है। मारिया ने उस तरफ चलना शुरू कर दिया। उसका ख्याल था कि शायद अंबर और नाग भी उसी तरफ जंगल में किसी जगह उतरे होंगे। चलते चलते वो दरख्तों के दरमियान आ गई। शाम हो रही थी। धूप दरख्तों पर से अपना दामन समेट रही थी। छाँव में रात के साए जाहिर होना शुरू हो गए थे। मारिया बेफिक्री से घास पर चली जा रही थी। उसे जरा भी खबर न हुई कि चंद कदम पर जंगली लोगों ने हाथी को पकड़ने के लिए एक बड़ा गहरा गड्ढा खोदकर ऊपर घास डाल रखी है। वो मजे से चली जा रही थी कि अचानक उसका पाँव घास में धंसा और फिर वो धड़ाम से घास के साथ ही नीचे गड्ढे में गिर गई। उसकी खुशकिस्मती कि वो घास के साथ ही गिरी और बच गई, वगरना किसी न किसी हड्डी के टूट जाने का खतरा था। मारिया घास पर से उठ खड़ी हुई। उसने ऊपर देखा, यह काफ़ी गहरा गड्ढा था और दीवारें बहुत बुलंद थी। मारिया अगर सारे जिस्म की ताकत खर्च करके भी उछलती तो उस गड्ढे की दीवारों से बाहर नहीं निकल सकती थी। उस गड्ढे में ही मारिया को रात हो गई। जब रात का अंधेरा जंगल में चारों तरफ छा गया तो वो हाथी जिसके लिए जंगलियों ने यह फंदा लगाया था अपनी जगह से निकलकर तालाब की तरफ पानी पीने चल पड़ा। तालाब को जाने के लिए यही रास्ता था। हाथी चलते चलते जब उस गड्ढे के पास आया जो उसको फांसने के लिए बनाया गया था तो वो रुक गया। उसने सूंड ऊपर करके जोर से 2-3 बार चीख मारी, गोया इस बात का ऐलान किया कि वो बच गया और आगे रवाना हो गया। उसकी चीख मारिया ने सुनी तो सहम कर दीवार से लग गई। दूसरी तरफ यही आवाज़ें जब जंगलियों ने अपनी झोपड़ियों में बैठे सुनी तो खुशी से नारे लगाए और नेज़े तलवारें लेकर गड्ढे की तरफ भागे। वो ये समझ रहे थे कि हाथी फंस गया है और मज़े से जाकर उसकी तिक्का बोटी करेंगे और खाएंगे। गड्ढे की घास वाली छत गायब थी। वो बड़े खुश हुए और गड्ढे के इर्द गिर्द नाचने लगे। जो ही उन्होंने मशल के रोशनी में गड्ढे के अंदर देखा तो दंग रह गए। गड्ढे में हाथी कहीं नहीं था। जंगली हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि गड्ढे के ऊपर डाली हुई घास की छत तो गड्ढे के अंदर जा गिरे और हाथी वहाँ ना हो। ज़मीन पर उन्हें हाथी के पाँव के निशान नजर आ गए। ये निशान तालाब की तरफ जा रहे थे।
वो तालाब की तरफ चले ही थे कि एक दरख्त के पीछे से अचानक चीख मारकर चालाक हाथी बाहर निकला और वहशियाना अंदाज में हमले के लिए जंगलियों की तरफ दौड़ा। जंगलियों ने हाथी को अपनी तरफ आते देखा तो घबरा गए और मशल वाले के हाथ से मशल गिर पड़ी। 2-3 जंगलियों के हाथी पर नेज़े भी फेंके, मगर ये नेज़े हाथी का कुछ न बिगाड़ सके। उसने लपक कर 2 जंगलियों को अपनी सूंड में लपेट कर और 2 को अपने पांव तले दबाकर कुचल दिया। सूंड वालों को उसने घुमाकर दरख्त के साथ इस तरह से पटखा कि उनका कचूमर निकल गया। बाकी लोग भाग गए। ये एक आदमखोर हाथी था और एक अरसे से जंगल में उसने दहशत फैला रखी थी। इंसान की बू से दूर से आ जाती थी। जंगली चीखते चिल्लाते वहां से भाग गए। हाथी ने जंगल में कुछ दूर तक उनका ताकुब किया और फिर वापस आ गया। गड़े के पास से गुजरते हुए हाथी रुक गया। उसे गड़े में से इंसान की बू आ रही थी। उसने सूंड झुकाकर गड़े में नीचे देखा। अंधेरे में उसे कुछ नजर न आया, मगर इंसान की बू बराबर वहां से आ रही थी। नीचे दीवार के साथ लगी मारिया ने भी ऊपर हाथी को देखा कि वो झुक कर घड़े में देख रहा है। वो डर गई। वो समझ गई कि ये आदमखोर है और इसे इंसान की बू आ रही है। अभी अभी उसने हाथी की चीख और जंगलियों की भाग दौड़ की आवाज़ें सुनी थी। मरने वाले जंगलियों की चीखें भी सुनी थी। उसे मालूम हो चुका था कि यह हाथी कुछ जंगलियों को हलाक कर चुका है। उसे एक तसल्ली थी कि हाथी गड्ढे में नहीं उतर सकता। वो थोड़ी देर तक वहाँ रुक कर आगे निकल जाएगा, लेकिन सवाल ये था कि वो उस गड्ढे में से कैसे निकलेगी। वहाँ ऐसी कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। रात गुजर गई। मारिया गड्ढे में ही सो गई। उसकी आंख खुली तो गड्ढे में सूरज की रोशनी दरख्तों से छन छन कर आ रही थी। अब उसने बाहर निकलने की तरकीबों पर सोच विचार शुरू कर दी। वो घास का रस्सा बना सकती थी, मगर रस्सा ऊपर उछाल कर क्या करेगी? उसके आगे कोई ऐसा हुक कहाँ से लाएगी जो बाहर जाकर किसी दरख्त से अटक जाए? ये ख्याल भी बेकार था। अब मारिया ने अपने आप को खुदा के भरोसे पर छोड़ दिया कि जो होगा उसके लिए ठीक होगा और खुदा उसके बाहर निकलने की कोई ना कोई सबील बना देगा। दोपहर हो गई, फिर धूप गड्ढे में से गायब होकर बाहर निकल गई। गोया शाम की आमद थी। इतने में कुछ लंगूर गड्ढे के ऊपर आकर नीचे गड्ढे में झांकने लगे। उन्हें कुछ नजर न आया तो परे हट गए। फिर शाम हो गई। जंगल में परिंदों ने चहचहाना शुरू कर दिया। जूं जूं रात हो रही थी, परिंदे दरख्तों पर खामोश होने लगे थे। फिर रात का अंधेरा फैल गया। जंगल में चारों तरफ खामोशी और गहरी खामोशी छा गई। मारिया गड्ढे में कितनी देर से कैद थी। वो परेशान हो गई। वो बाहर आने के लिए बेताब थी, मगर बाहर आने का उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था। शायद आधी रात गुजर रही थी कि मारिया ने कुछ लोगों की आवाज़ सुनी। उसने कान उन आवाज़ों पर लगा दिए। शायद ये जंगली लोग थे जो तेज तेज बातें करते गड्ढे की जानिब चले आ रहे थे। आवाज़ गड्ढे के ऊपर आकर रुक गई। मारिया में यह भी ताकत थी कि वो दुनिया की हर जुबान समझ लेती थी। उसने सुना एक जंगली कह रहा था, घास का छप्पर अंदर गड्ढे में गिरा है, उसे अंदर से उठा लिया जाए। दूसरे ने कहा, नहीं नहीं, हम नया बनाएंगे। फिर एक जंगली बोला, उसकी क्या ज़रूरत है, देर हो जाएगी, मैं नीचे जाकर छप्पर उठा लाता हूँ, तुम रस्सी नीचे करो। मारिया खामोशी ये सारी बातें सुन रही थी। उसके दिल में उम्मीद की एक किरण चमकी, क्योंकि अगर रस्सी नीचे फेंकी गई तो वो भी रस्सी को पकड़कर बाहर निकल आएगी। उसने ऊपर देखा, एक जंगली मशल लेकर गड्ढे के किनारे पर खड़ा हो गया। अंदर उसकी रोशनी आने लगी, मगर चूंकि मारिया गायब थी इसलिए वो किसी को जंगली को नजर न आ सकी। इतने में एक मोटा मजबूत रस्सा गड्ढे के अंदर फेंक दिया गया। फिर एक नाटे कद का जंगली उस रस्से के साथ लटक कर गड्ढे में आ गया। उसने बांस का छप्पर जो कि एक जगह से टूट गया था उठाकर रस्सी के साथ बांध दिया। फिर रस्से को पकड़ा और आवाज दी, ऊपर खींचो। गड्ढे से बाहर निकलने का ये आखिरी मौका था। मारिया लपक कर रस्से की तरफ गई। उसने नीचे लटकते रस्से के सिरे को दोनों हाथों से थाम लिया। उसके लटकते ही ऊपर से रस्से को खींचने वालों को एक झटका लगा और वजन एकदम से बढ़ गया, क्योंकि उसके साथ अब मारिया भी लटकी हुई थी। ऊपर से जंगली ने आवाज दी, अरे कमबख्त, ये तूने रस्से के साथ क्या बांध दिया है? इसका बोझ बढ़ गया है। नीचे से जंगली ने कहा, मैंने कुछ नहीं बांधा, मगर बोझ उसे भी महसूस हुआ था। रस्सा उसके हाथ में एकदम से तन गया। उसे यूं लग रहा था जैसे नीचे कोई रस्से को खींच रहा है। उसने झुक कर नीचे देखा, नीचे कोई भी नहीं था। रस्से का दूसरा सिरा उसे साफ खाली लटकता दिखाई दे रहा था। ऊपर से जंगलियों ने फिर आवाज लगाई, अरे ये रस्सा बोझल क्यों है? नीचे वाले ने तुनक कर कहा, आदमखोरों की औलाद, क्यों बक बक कर रहे हो? जल्दी से मुझे बाहर खींचो, मुझे अंदर किसी हाथी की रूह का आसेब लगता है। ऊपर वालों ने 2-1 हाथ मारकर रस्सा ऊपर खींच लिया। जंगली ऊपर आ गया। मारिया ने भी जल्दी से गड्ढे के किनारों को पकड़ा और बाहर आ गई। अरे तेरा बोझ एकदम क्यों बढ़ गया था? मेरा बोझ इसलिए बढ़ गया था कि नीचे से कोई हाथी की रूह रस्से को खींच रही थी। जाने कितने हाथियों को हमने इस गड्ढे में डालकर हलाक किया है। सब जंगली हंसने लगे। मारिया को किसी की खबर ना हो सकी। मारिया एक तरफ खड़ी उन जंगलियों की बातें सुनती रही। उन्होंने बड़ी फुर्ती से छप्पर को मरम्मत किया, उसको गड्ढे के ऊपर डाला, ऊपर घास बखेरी और वापस अपने झोंपड़ों की तरफ चले गए। उन्होंने हाथी के लिए फिर से फंदा तैयार कर लिया था। अब हाथी को तालाब की तरफ आते हुए उसमें गिरना था। मारिया को भूख लग रही थी। उसने सोचा कि उन जंगली लोगों की झोंपड़ियों की तरफ चलना चाहिए, वहां जरूर कुछ ना कुछ खाने को मिल जाएगा। चुनाचे वो रात के अंधेरे में उधर को रवाना हुई जिधर वो जंगली गए थे। जंगल में अंधेरा था। दरख्तों से ऊपर कहीं चांद अपनी रोशनी बखेरने लगा, मगर ये रोशनी नीचे तक नहीं पहुंच सकती थी, क्योंकि नीचे पत्तों का घन बहुत था। दूर दरख्तों में मारिया ने झोंपड़ों के बाहर जलते हुए दिए देखे। यही वो जगह थी जहां जंगली रहते थे। मारिया करीब आ गई। झोंपड़ों में पहुंचकर जंगली आराम करने के लिए फिर लेट गए थे। बाहर चंद एक वहशी नेज़े लिए पहरा दे रहे थे।
मारिया अब इस तलाश में थी कि वो जगह कहाँ है जहाँ उन लोगों ने खाने पीने की चीज़ें रखी हैं। एक झोंपड़ी का दरवाज़ा अध खुला था, अंदर एक तेल का दिया जल रहा था। मारिया जल्दी से उस झोंपड़ी के अंदर आ गई। कोने में अमरूदों और नारियलों का ढेर लगा था, एक तरफ केलों के जर्द गुच्छे पड़े थे। मारिया ने जल्दी जल्दी कुछ केले और अमरूद खाकर पेट की आग बुझाई, फिर उसी जगह बांस की दीवार के साथ लग कर लेट गई। थोड़ी देर बाद उसे नींद आ गई। जब आंख खुली तो दिन निकल आया था, मगर बाहर रोशनी बहुत कम थी। मारिया ने उठकर आंखें मली, अंगड़ाई ली और बाहर आकर देखा आसमान काले स्याह बादलों में छुपा हुआ था। बड़ी स्याह घटा थी। ऐसा लगता था कि अगर अब बादलों ने बरसना शुरू किया तो बारिश नहीं रुकेगी और जल थल एक कर देगी। ठंडी हवा चल रही थी। जंगली शायद जंगल में हाथी की लाश उठाने गए हुए थे, क्योंकि रात यकीनन हाथी गड्ढे में गिरकर फंस चुका था। पीछे झोंपड़ों में जंगलियों की औरतें और बच्चे ही रह गए थे। काली काली औरतें अपने नंग धड़ंग बच्चों को नहला धुलाकर शकरकंदी और अमरूद खाने को दे रही थीं। कुछ औरतें करीब ही गंदे जोहड़ पर बैठी कपड़े धो रही थीं। इतने में मारिया ने देखा कि कुछ लोग दरिया की तरफ से झोंपड़ों की तरफ चले आ रहे हैं। उनके कपड़े बड़े अच्छे थे, रंग सफ़ेद थे, साफ लगता था कि अंग्रेज़ हैं। ये 6-7 लंबे तिरंगे आदमी थे। उन्होंने तलवारें और नेज़े उठा रखे थे। उनके पीछे पीछे भी नेज़ों वाले वहशी थे। ये वहशी किसी दूसरे जंगल के मालूम हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने बालों में तोते के पर लगा रखे थे। झोंपड़ों के करीब आकर ये लोग झाड़ियों में छुप गए। वो आदमी भी छुप गए। मारिया हैरान हुई कि लोग क्या करना चाहते हैं और यहाँ किस लिए आए हैं। औरतें, लड़कियां और बच्चे उन लोगों से बेखबर अपने अपने काम में लगे थे कि अचानक झोंपड़ों में एक गोल सी शय आकर गिरी और वो फटी। मामूली सा धमाका हुआ, फिर उस गोल शय में से धुआं निकलकर तेजी से झोंपड़ों के ऊपर फैल गया। उसको सूंघते ही औरतें और बच्चे बेहोश हो गए। मारिया वहां से भाग चुकी थी। जब उस धुएं का असर कुछ कम हुआ तो मारिया ने देखा कि झोंपड़ों में गहरी खामोशी है। फिर कुछ बच्चों के रोने और औरतों के चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। मारिया भागकर झोंपड़ों की तरफ गई। वहां उसने ये नज़ारा देखा कि बूढ़ी औरतों ने कुछ बेहोश और कुछ नीम बेहोश बच्चों को उठा रखा था। औरतों की आवाज़ें सुनकर जंगल से उनके वहशी आदमी भी वहां आ गए। औरतों ने रोनी आवाज़ों में उन्हें बताया कि दरिया की तरफ से सफ़ेद लोग आए थे। उन्होंने झोंपड़ों में धुआं कर दिया, जिससे बच्चे बेहोश हो गए, औरतें भी बेहोश हो गई। फिर वो लोग उनकी जवान लड़कियों को उठाकर ले गए हैं। ये सुनना था कि वहशी जंगली गुस्से से बिफर गए। वो शोर मचाते दरिया की तरफ भागे। मारिया भी उनके पीछे हो गई, मगर वहाँ कुछ भी नहीं था। ये लोग नाकाम वापस आए, गम से निढाल थे। उनकी बहनों को अंग्रेज़ सफ़ेद फार्म लोग अगवा करके ले जा चुके थे। जंगली लोग रो पीट कर चुप हो गए। मालूम हुआ कि साल में कभी कभी शुमाल से सफ़ेद लोग आकर उनकी औरतों को उठाकर ले जाते हैं और फिर उन्हें दूसरे मुल्कों में ले जाकर अमीर ताजरों के यहाँ फ़रोख्त कर देते हैं। मशरक़ी मुल्कों में मारिया इस किस्म की एक औरतों की मंडी देख चुकी थी, जहाँ दुकानों पर औरतें बिकती थीं। मारिया को बड़ा सदमा हुआ, क्योंकि जो लड़कियाँ उठाई गई थीं उनकी माएँ रो रो कर बुरा हाल कर रही थीं। मारिया ने सोचा कि उन बेचारी सीधी सादी बेगुनाह माओं की मदद करनी चाहिए। उनको एक ये भी ख्याल था कि जाने अंबर और नाग किस जगह उतरे हैं। ये ख्याल आया कि चलो निकल चलो, शायद इस तरह अंबर और नाग से भी मुलाकात हो जाए। वो दरिया की तरफ चल पड़ी। आसमान पर काली घटा उसी तरह छाई हुई थी। मारिया ने देखा कि दरिया पर चढ़ाव पर था। अगरचे उसका पाट ज़्यादा चौड़ा नहीं था, मगर पानी का बहाव बड़ा तेज था। मारिया ने सोचा कि सफ़ेद लोग ज़ाहिर है किसी कश्ती या जहाज़ पर सवार होकर यहाँ तक आए होंगे। फिर उनका जहाज़ कहाँ चला गया? जितनी देर में जंगली दरिया पर गए वो गायब हो चुके थे। ज़रूर वो लोग जंगल के रास्ते जा रहे हैं और उनका जहाज़ या कश्ती दूर आगे जाकर किसी जगह मौजूद उनका इंतज़ार कर रही होगी। ये सोचकर मारिया ने खुदा का नाम लिया और जंगल में दरिया के किनारे किनारे चल पड़ी। चलते चलते अभी वो दरिया के आखिरी घाट पर ही पहुंची थी कि एकदम से बूंदाबांदी शुरू हो गई। मारिया ने देखा कि एक पगडंडी जंगल के अंदर चली गई थी। मारिया उस पगडंडी पर आ गई। उसने सोचा कि शायद जंगल के अंदर कहीं बारिश से बचने को जगह मिल जाए। जंगल के अंदर बारिश कम थी। बारिश के कतरे दरख्तों के घने पत्तों में ही रुक जाते थे। मारिया जंगल में काफ़ी अंदर निकल आई। एक जगह उसने बड़ी सी चट्टान देखी जिस पर जंगली बेलें चढ़ी हुई थी और उनका रंग स्याह पड़ चुका था। उस चट्टान के अंदर एक गड्ढा सा बन गया था। मारिया उस गड्ढे में जाकर बैठ गई। ये छोटा सा शगाफ था जो चट्टान के पहलू में हज़ारों सालों से पड़ा हुआ था। मारिया ने अभी चट्टान के शगाफ में आकर दम ही लिया था कि जंगल में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ये बारिश इतनी तेज़ ज़्यादा थी कि घने दरख्तों के अंदर से होकर नीचे आ रही थी। मारिया ने हिरनों की एक डार को अपने घरों की तरफ भागते देखा। उसके बाद एक रीछ भागता हुआ आया। उसको बारिश में कोई और जगह ना मिली तो सीधा उस चट्टान की तरफ आ गया जहां मारिया ने पनाह ले रखी थी। मारिया रीछ को देखकर एकदम से परे हट गई। रीछ चट्टान की दीवार के साथ आकर लग गया। रीछ चूंकि जंगली जानवर था इसलिए उसे इंसान की बाकायदा बू आ रही थी। उसने जिधर से बू आ रही थी उधर देखा, मगर वहाँ उसे कोई इंसान दिखाई न दिया। बड़ा हैरान हुआ कि ये इतनी तेज़ बू आ रही है और इंसान भी नहीं है। उसने उस तरफ बढ़ना शुरू कर दिया जिधर मारिया खड़ी थी। अभी वो एक कदम ही बढ़ा था कि जंगल शेर की गरज से गूंज उठा। रीछ का अगला उठा हुआ कदम उसी जगह रुक गया। शेर की गरज ने उसे भी परेशान कर दिया था। उसने गर्दन को 2-3 बार फिजा में थोथनी उठाकर बुलंद किया और फिर एक तरफ को भाग खड़ा हुआ। मारिया ने सुख का सांस लिया। अब उसे ये खतरा था कि कहीं शेर साहब उधर तशरीफ न ले आए, और वही हुआ। यानी दूसरे ही लम्हे एक ताकतवर जवान शेर दरख्तों से निकलकर सामने आ गया।
बारिश में वो भीग रहा था और उसने जब मुंह ऊपर उठाकर एक गरज की आवाज़ निकाली तो दरख्तों में पनाह लिए हुए परिंदे फड़फड़ा कर उड़ गए। शेर ने गर्दन घुमाकर दाएं बाएं देखा। उसकी दुम बार बार हरकत कर रही थी। फिर अचानक पीछे से सन करके एक तीर आया और शेर की गर्दन में गड़ गया। शेर उछला और धाड़ता हुआ भागा, मगर 2 कदम चलकर गिर पड़ा। मारिया समझ गई कि जो तीर उसे लगा है वो जहरीला था और ये तीर किसी वहशी ने चलाया होगा। अब मारिया उस जंगली वहशी का इंतजार करने लगी जिसने तीर चलाया था। इतने में दरख्तों के बीच में से 2 सफ़ेद आदमी अपने जंगली साथियों को लेकर बाहर आ गए। उन्होंने आते ही शेर की गर्दन तलवार से काटकर अलग कर ली। शेर को डोली डंडा कर के जंगलियों ने उठाया और एक तरफ को चल पड़े। सफ़ेद आदमियों को देखकर मारिया चौंक उठी। ये तो वही आदमी थे जिन्होंने जंगलियों की लड़कियों को अगवा किया था। मारिया का ख्याल दुरुस्त निकला। ये लोग अभी तक जंगल में ही छुपे हुए थे, शायद अपने जहाज़ का इंतजार कर रहे थे और साथ साथ शेरों की खालें और सर भी इकट्ठे कर रहे थे। मारिया चट्टान के शिगाफ से निकलकर उन लोगों के पीछे पीछे चल पड़ी। जंगल में बारिश हो रही थी। सफ़ेद लोगों ने लंबे लंबे भारी चोगे से डाल रखे थे। मारिया का लिबास भीग गया था। आगे जाकर जंगल घना हो गया जिसकी वजह से रोशनी भी कम थी। चलते चलते ये सफ़ेद फार्म लोग एक तरफ को मुड़ गए। मारिया भी उनके पीछे पीछे रही। अब सामने एक टीला आ गया जिसके पाँव में एक सुराख बना हुआ था। सुराख का दाना इतना था कि आदमी झुककर अंदर जाता था। सफ़ेद फार्म लोग और दूसरे जंगली उसके अंदर झुककर दाखिल हो गए। मारिया भी कुछ देर के बाद अंदर चली गई। उसे यकीन था कि उन लोगों ने जंगली लड़कियों को उसी जगह छुपाया हुआ है। अंदर तेल का दिया जल रहा था और अंदर से गार की छत ऊंची हो गई थी। मारिया ने देखा कि एक जानिब शेर की खालों का ढेर पड़ा है। दोनों सफ़ेद फार्म एक तरफ बैठकर कुछ पीने लगे। फिर उन्होंने अपनी ज़ुबान में बातें शुरू कर दी। उनकी बातों से मारिया को बड़ी मायूसी हुई। मालूम हुआ कि उन लोगों ने एक बादबानी जहाज़ में जंगली लड़कियों को आगे रवाना कर दिया है। ये लोग अब दूसरे बादबानी जहाज़ का इंतज़ार कर रहे थे। मारिया ने सोचा कि उसे उन लोगों के पीछे लगा रहना चाहिए, क्योंकि आखिर ये भी वहीं पहुंचेंगे जहां वो लोग और जंगली लड़कियां हैं। दोपहर के बाद एक वहशी भागता हुआ अंदर आया और बोला, मालिक, जहाज़ दरिया में आ गया है। ये सुनकर दोनों सफ़ेद फार्म जल्दी से उठे। शेरों की खालें और सर वहशियों के कंधों पर लादे और तलवारें कंधों पर रखकर दरिया की तरफ रवाना हो गए। मारिया भी साथ साथ चली। जंगल में से निकलकर वो दरिया पर आए तो ज़रा फासले पर एक छोटा सा बादबानी जहाज़ खड़ा था। उस किस्म के जहाज़ों की 2 मंजिलें होती थीं और अंदर 6-7 छोटे छोटे कमरे बने होते थे। ऐसे जहाज़ आमतौर पर छोटा मोटा सामान इधर उधर पहुंचाने के काम आते थे। आजकल उस किस्म के जहाज़ों का काम स्टीमरों से लिया जाता है। जहाज़ पर लाल झंडा लहरा रहा था। उन सफ़ेद फार्मों ने हाथ हिलाए। जहाज़ पर से एक कश्ती उतार दी गई। उसमें एक मल्लाह सवार था। कश्ती दरिया के किनारे आकर लग गई। दोनों सफ़ेद फार्म उसमें सवार हो गए। एक वहशी ने अपने आका से मजदूरी मांगी तो दूसरे सफ़ेद फार्म ने तलवार का एक हाथ मारकर उसे ज़मीन पर गिरा दिया। वो बेचारा एक पल में तड़प कर मर गया। दूसरे ने अपने साथी का अंजाम देखा तो सर पर पाँव रखकर भाग खड़ा हुआ। मारिया जल्दी से कश्ती के एक तरफ सवार हो गई। कश्ती तेजी से जहाज़ की तरफ चलने लगी। जिसने बेगुनाह वहशी को मार डाला था उसकी एक आंख कानी थी। मारिया ने दिल ही दिल में उसको काना सफ़ेद कहकर याद करना शुरू कर दिया। वो उस सफ़ेद काने को कभी माफ़ नहीं करेगी। उसने फैसला किया कि वो उस सफ़ेद काने से वहशी मजदूर के कत्ल का बदला ज़रूर लेगी। कश्ती थोड़ी देर बाद बादबानी जहाज़ के साथ जाकर लग गई। दोनों सफ़ेद फार्म रस्सी की सीढ़ी की मदद से ऊपर चढ़ गए। उनके बाद कश्ती को ऊपर उठा लिया गया। मारिया कश्ती के अंदर ही बैठी रही। वो कश्ती के साथ ही ऊपर जहाज़ पर पहुंच गई। जहाज़ का अर्शा यानी ऊपर का डेक मुख्तसर था। कोने में लकड़ी के पुराने 2-4 संदूक पड़े थे। एक जगह पुराने बानों के गट्ठे रखे थे। उस जहाज़ पर सारे सफ़ेद फार्म काम करते थे। सिर्फ 2-3 काले थे जिनको जहाज़ की सफाई के काम पर लगाया गया था। मारिया कश्ती से उतरकर डेक यानी अर्शे पर आ गई। कश्ती के ऊपर आते ही जहाज़ ने लंगर उठाकर बादबान खोल दिए। बादबानों में हवा के भरते ही उसने दरिया में एक तरफ चलना शुरू कर दिया। बारिश अभी तक उसी तरह हो रही थी। मारिया अर्शे पर एक छप्पर के साए में खड़ी थी। सब लोग नीचे थे। सिर्फ ऊपर सामने की जानिब एक बूढ़ा सफ़ेद फार्म एक बादबान की रस्सी बांध रहा था। रस्सी बांधकर उसने बादबान का रुख एक खास जाविये पर कर दिया और टोपी उतारकर उसे निचोड़ता हुआ नीचे उतर गया। कुछ देर तक तो मारिया वहाँ खड़ी रही। फिर वो थक गई। सोचा कि नीचे चलना चाहिए। वो कब तक यहाँ खड़ी रहेगी? नामालूम अभी दरिया में कितना सफ़र बाकी है। उसे आखिर नीचे जाना पड़ेगा। मारिया अर्शे की सीढ़ी पर आ गई। ये सीढ़ी लकड़ी की थी, नीचे जा रही थी। 6-7 सीढ़ियाँ उतर कर ही दूसरी मंजिल आ गई। यहाँ तंग सा रास्ता था जिसके दोनों जानिब छोटी छोटी कोठलियाँ बनी हुई थी। अब हालत ये थी कि अगर मारिया वहाँ खड़ी होती और कोई मल्लाह वहाँ से गुजरता तो उसका जिस्म मारिया के जिस्म से रगड़ खाता, क्योंकि रास्ता तंग था। मारिया की सबसे अहम ज़रूरत उस वक्त ये थी कि वो किसी कोठली यानी कैबिन में चली जाए। उसने 2-3 कोठलियों के दरवाज़ों में से झांक कर देखा। अंदर मल्लाह बैठे अपने अपने काम में लगे थे। कोई भी कैबिन खाली नहीं था। कोने वाली आखिरी कोठली रह गई थी। वहाँ जाकर मारिया ने देखा वहाँ आदमी तो कोई नहीं है, मगर आधी कोठली आटे की बोरियों, खुश्क मेवों और शेर की खालों से भरी हुई है। एक कोने में जलाने वाली लकड़ियों का ढेर लगा है। मारिया के लिए इस जगह बड़ी महफूज थी। उसने खुश्क मेवों की बोरियों के ऊपर एक तरफ अपने वास्ते जगह बना ली। एक बोरी का मुंह ज़रा सा खुला था।
मारिया ने अंदर हाथ डालकर खुश खोबानियों और मेमों से भरकर मुट्ठी बाहर निकाली और मज़े से खानी शुरू कर दी। यहाँ दीवार पर छत के साथ लगा एक छोटा सा सुराख था जिस पर लोहे की सुलाखें चढ़ी हुई थीं। उस सुराख में से ताज़ा हवा भी अंदर आ रही थी और बाहर का नज़ारा भी किया जा सकता था। मारिया ने चेहरा सुलाखों के साथ लगाकर बाहर देखा। दरिया के किनारे किनारे जंगल पीछे को जा रहे थे। जहाज़ आराम से आगे की तरफ चला जा रहा था। आसमान पर बादल ही बादल थे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। दरिया का पानी लहरें मार रहा था। ऐसा लगता था जैसे सैलाब आ रहा हो। मारिया बोरियों पर लेट गई और उसे नींद ने आ लिया। वो सारी रात सोई रही। सुबह उसकी आंख खुली तो सुराख में से दिन की हल्की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। मारिया ने कुछ खुश्क खजूरों से नाश्ता किया। अब उसे गर्म गर्म कहवे की ज़रूरत महसूस हुई जो उसे वहाँ नहीं मिल सकता था। वो बोरियों से उतरकर कोठली के दरवाजे पर आ गई। वो नहाकर कपड़े भी तब्दील करना चाहती थी। उसने देखा कि मल्लाह एक तरफ तौलिए कंधों पर रखे जा रहे हैं। मार समझ गई कि उधर गुसल खाना होगा। वो भी उस तरफ चली। मारिया एक तरफ खड़ी होकर इंतज़ार करने लगी कि गुसल खाना खाली हो तो वो भी अंदर जाए। आखिर खुदा खुदा करके गुसल खाना खाली हुआ तो वो अंदर जाकर नहाने लगी। नहाकर बाहर निकली तो पुराने कपड़े उसने पहन रखे थे। कपड़े बदलने की ज़रूरत थी। वो एक खूबसूरत से कैबिन में आ गई। ये जहाज़ के कप्तान का कैबिन था जो उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं था। मारिया ने उसके बिस्तर की चादर उठाकर लपेटी। पुराने कपड़े निचोड़कर आग पर सुखाए। फिर जब वो सूख गए तो उन्हें दोबारा पहना। बिस्तर की चादर अपने साथ ली ताकि बोरियों पर बिस्तर बन जाए और उसे अपनी कोठली में बोरियों के ऊपर रखकर गरम गरम कहवे की तलाश में निकल खड़ी हुई। उसे मालूम था कि जहाज़ का बावर्ची खाना किधर है। बावर्ची खाने में आग जल रही थी। आग पर एक बड़ी केतली में कहवा उबल रहा था। एक सफ़ेद फाम मोटा बावर्ची कहवा गिलासों में डालकर 7 बाजरे की खुश्क रोटी और फल हर एक को दे रहा था। चंद एक मल्लाह थे। ये मेज़ों के गिर्द बैठे हुए आराम से नाश्ता कर रहे थे। मारिया ने एक खाली गिलास उठा लिया और बावर्ची के पास जाकर खड़ी हो गई। बावर्ची को गिलास नज़र नहीं आ रहा था। वो तो मारिया के हाथ में आते ही गायब हो गया था। बावर्ची आराम से बैठा अपना नाश्ता कर रहा था जिस पर मारिया ने आगे बढ़कर वो डोंगा उठा लिया जिसके साथ बावर्ची कहवा डालता था। बावर्ची ने जो नज़रें घुमाकर देखा तो डोंगा गायब था। इस दौरान में मारिया ने कहवा अपने गिलास में डाल लिया था। बावर्ची ने जब दोबारा अचानक डोंगे को अपनी जगह पर आते देखा तो वो उछल पड़ा। ये मैं क्या देख रहा हूँ, वो बोल उठा। क्या हुआ मोटे, एक मुल्लाह ने कहा। बावर्ची बोला, ये डोंगा अभी अभी मेरी आंखों से गायब हुआ था, अब फिर अपनी जगह पर आ गया है। सारे मल्लाह हंसने लगे। मोटा पागल हो गया, इसे दरिया में फेंक दो। एक मल्लाह ने दूर से एक अमरूद फेंका जो मोटे बावर्ची के गंजे सर से टकरा कर दूर जा पड़ा। अरे मोटे, ये अमरूद खा ले, तेरी नज़र ठीक हो जाएगी। तीसरा मल्लाह बोला, इसकी नज़र नहीं, इसका दिमाग ख़राब है। तो फिर उसे जूते मारो दोस्तों। इस पर सारे के सारे मल्लाह कहका लगाकर हंस पड़े। मगर बावर्ची बराबर डोंगे की तरफ देख रहा था। वो सच्चा था। उसने वाकई कहवे के डोंगे को गायब होते और फिर दोबारा जाहिर होते देखा था और बिलाशुबा ऐसा ही हुआ था। उसने कहा, दोस्तों तुम चाहे जो कह लो, मैं ठीक कह रहा हूँ। मेरी आंखों के सामने से ये डोंगा गायब हुआ है और दोबारा जाहिर हुआ है। एक मल्लाह ने उठकर अपना खाली गिलास मल्लाह के आगे रखते हुए कहा, अरे उल्लू के पट्टे, ये देख, मैं अपना खाली गिलास तेरी आंखों के सामने रखता हूँ। इससे कहो कि ये गायब हो जाए। ये क्यों गायब नहीं होता? मारिया ये सारा तमाशा देख रही थी और कोने में एक तरफ बैठी नाश्ता कर रही थी। अब जो उसने देखा कि मामला दिलचस्प होता जा रहा है और गरीब बावर्ची पर कोई एतबार नहीं कर रहा, हर मल्लाह उसका मजाक उड़ा रहा है, तो वो अपनी जगह से उठी और बावर्ची के पास आकर खड़ी हो गई। वही मल्लाह अपनी खाली गिलास उसके सामने रखे कह रहा था, अरे उल्लू की दिम, अब इस गिलास को गायब करके दिखा। सारे मल्लाह वहाँ खड़े मोटे गंजे बावर्ची को मजाक मजाक में मजबूर कर रहे थे कि वो गिलास को गायब करके दिखाए। मारिया ने बड़े आराम से हाथ आगे बढ़ाया और गिलास उठा लिया। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि गिलास उनके सामने से एकदम से गायब हो गया था। वो एक दूसरे को हैरत से तकने लगे। बावर्ची अपनी जगह से उछलकर भूत भूत कहता परे होकर खड़ा हो गया। मारिया ने गिलास दोबारा उसकी जगह पर रख दिया। इस पर मल्लाह घबराकर बाहर को दौड़े। भूत भूत, यहाँ भूत है। ये खबर कप्तान को पहुंची तो वो जल्दी से बावर्ची खाने में आया। उसने गिलास का मुआयना किया जो गायब हो गया था, फिर मुस्कुरा कर कहने लगा, मुझे तो इसमें गायब होने वाली कोई बात नज़र नहीं आती। मोटे बावर्ची ने कहा, जनाब, ये मेरी आंखों के सामने 2 बार गायब हुआ है। दूसरे मल्लाह बोल पड़े, हाँ जनाब, एक बार गायब होते तो हमने भी देखा है। कप्तान ने गिलास दोबारा अपनी जगह पर रखकर कहा, तुम सब लोगों ने ज़रूर भंग पी रखी है, चलो अपना अपना काम करो, भागो। मल्लाह अपनी अपनी जगहों पर जाकर काम में लग गए। उस वक्त मारिया डेक पर कोने में एक जगह खड़ी दरिया का मंजर देख रही थी। शाम होने वाली थी। आसमान पर उसी तरह बादल छाए हुए थे। रात के खाने पर मारिया कप्तान के कैबिन के पास से गुजरी तो उसे अंदर से बातों की आवाज़ आई। वो रास्ते में खड़ी नहीं हो सकती थी। उसने महसूस किया कि दरवाज़ा खुला है। वो अंदर चली गई और दीवार के साथ लग कर खड़ी हो गई। कप्तान के साथ वही दोनों स्याह फाम, जिनमें से एक काना था, बैठे थे। कप्तान कह रहा था, अगर मौसम ठीक रहा और हवा इसी तरह चलती रही तो हम ठीक वक्त पर मंजिल पर पहुंच जाएंगे। सफ़ेद काना बोला, अभी कितने दिनों का सफ़र बाकी है? कप्तान मुस्कुराया, अभी पूरे 7 दिन लगेंगे। अभी तो हम दरिया में हैं, फिर 5 दिन का समंदर का सफ़र बाकी है। ये सुनकर मारिया तो परेशान हो गई।
یہ کم وقت تو سمندر کا سفر بھی کرنے والے تھے، خدا جانے کس ملک کو جا رہے تھے۔ امبر اور ناگ کو وہ کہاں تلاش کرے گی؟ اس کا تو خیال تھا کہ یہ لوگ دریا میں سفر کرتے اسی ملک کے اندر کسی شہر میں جائیں گے جہاں وہ امبر اور ناگ کو بھی تلاش کر لے گی۔ اب نقشہ ہی بدل گیا تھا۔ کانے کے ساتھی نے کہا، ٹھیک ہے، خدا کرے کہ موسم ٹھیک رہے۔ پھر کانے نے کپتان سے پوچھا، تم نے لڑکیاں جن لوگوں کے حوالے کی وہ اعتبار کے آدمی تھے نا؟ کپتان بولا، کیوں نہیں جناب، ہم جس کام کی اجرت لیتے ہیں اس کی تکمیل پوری دیانتداری سے کرتے ہیں۔ آپ نے ہمیں 4 لڑکیاں دی تھی، میں نے چاروں کی چاروں لڑکیاں اپنے آدمیوں کے حوالے کر کے تاکید کر دی تھی کہ وہ اپنے آپ آدمیوں تک پہنچا دیں، وہ لوگ ایلور پہنچنے ہی والے ہوں گے۔ ماریا کو یاد آ گیا کہ ایلور نام کا جزیرہ بحر الکاہل میں تھا، تو کیا یہ لوگ ایلور جا رہے ہیں؟ ماریا خاموشی کے ساتھ وہاں سے نکلی اور سیدھی اپنی کوٹھلی میں آ کر بوریوں پر لیٹ گئی۔ اس کے سامنے ایک لمبا سمندری سفر تھا۔ شاید آدھی رات کو جہاز سمندر میں داخل ہونے والا تھا۔ جہاز آدھی رات کو سمندر میں داخل ہو گیا۔ ماریا اس وقت سو رہی تھی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو دیوار کے سوراخ میں سے کیا دیکھتی ہے کہ جہاز سمندر میں چلا جا رہا ہے۔ ایک پل کے لیے اس نے سوچا کہ یہ چھوٹا سا جہاز کیا اتنے بڑے سمندر میں سفر کر سکے گا؟ پھر اسے خیال آیا کہ یہ لوگ ناجائز طور پر یہ کاروبار کرتے ہیں اور انہیں اس سمندری سفر کا کافی تجربہ ہوگا۔ یہ لوگ جزیرہ ایلور پہنچ جائیں گے۔ ویسے بھی سمندر پرسکون تھا، کسی طوفان کے آثار نہیں تھے۔ ابھی سمندر میں 5 دن تک کا سفر کرنا تھا۔ اگر جہاز بڑا ہوتا تو اس کی رفتار بھی تیز ہوتی اور شاید 2 روز میں یہ سفر ختم ہو جاتا، مگر یہ جہاز چھوٹا تھا۔ 4 روز تک جہاز سمندر میں سفر کرتا رہا۔ 5ویں روز کانا سفید فام کسی کام سے کوٹھلی میں آ گیا جہاں ماریا نے پناہ لے رکھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹوکری تھی، شاید وہ خشک میوے لینے آیا تھا۔ اتفاق سے ماریا اس وقت بوریوں سے نیچے اتری تھی اور باہر نکلنے والی تھی۔ کانے سفید نے اوپر جا کر بوری کو کھلا دیکھا تو حیران ہوا کہ یہ خشک میوے یہاں سے کون چوری کر رہا ہے۔ اس نے باہر جا کر کپتان کو اطلاع دی، جناب آپ کے سٹور سے ملاح خشک میوے چراتے ہیں۔ کپتان نے ہنس کر کہا، تو کیا وہاں سے سونا چوری کریں گے؟ ٹھیک ہے، ہمارے ملاحوں کو خشک میووں کا بہت شوق ہے۔ کانا سفید بڑبڑاتا ہوا واپس آ گیا۔ کوٹھلی میں آ کر اس نے بوری کو رسی کے ساتھ اچھی طرح سی دیا اور چلا گیا۔ ماریا کو یہ شخص زہر لگتا تھا، ویسے بھی یہ بڑا ظالم تھا اور اس نے ایک جنگلی کو اس کی آنکھوں کے سامنے ہلاک کیا تھا۔ ماریا اس جنگلی کے خون کا اس سفید فام کانے سے بدلہ لینا چاہتی تھی۔ وہ ناشتے کے لیے باورچی خانے میں آ گئی۔ یہاں کچھ ملاح بیٹھے کھا پی رہے تھے۔ گنجا باورچی اپنی جگہ پر مزے سے بیٹھا تھا اور ہنس ہنس کر ملاحوں سے باتیں کر رہا تھا، انہیں قہوہ پیالوں اور ڈونگوں میں ڈال ڈال کر دے رہا تھا۔ ماریا بھی اس کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ کسی خالی ڈونگے کی تلاش میں تھی۔ اس نے دیکھا کہ وہی کانا سفید فام ناشتہ کے لیے آ رہا ہے۔ ایک میز پر بیٹھ کر اس نے کہا، میرے لیے ابلی ہوئی مرغی، انڈے اور قہوہ لاؤ۔ باورچی بیچارہ اس بدخصلت انسان سے بہت ڈرتا تھا، کیونکہ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ 2 منٹ میں معمولی سی بات پر انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اس نے کہا، جو حکم جناب۔ پھر ایک نوکر نے پلیٹ میں ابلی ہوئی مرغی کی ٹانگ، 2 ابلے ہوئے انڈے اور قہوے کا ڈونگا رکھا اور کانے کے آگے جا کر رکھا دیا۔ کانے کی کانی آنکھ پھڑکی۔ مرغی کی ٹانگ اور انڈے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا۔ ماریا کو شرارت سوچی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور کانے کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر اس نے بڑے آرام سے ہاتھ بڑھا کر کانے کی پلیٹ میں سے انڈا اور مرغی کی ٹانگ اٹھا لی۔ کانا سفید فام سکتے میں آ گیا۔ اس کی پلیٹ میں سے مرغی اور انڈا اس کی ایک آنکھ کے دیکھتے دیکھتے غائب ہو گیا تھا۔ وہ اٹھ بیٹھا اور غصے میں بولا، یہ کیا ماجرا ہے؟ باورچی نے دور سے پوچھا، کیا بات ہے جناب؟ اور جب کانے نے بتایا کہ اس کے پلیٹ میں سے مرغی اور ایک انڈا غائب ہو گیا تو سب لوگ دہشت زدہ سے ہو کر رہ گئے۔ انہیں اس روز والا بھوت یاد آ گیا۔ گنجا باورچی بیچارہ تو تھر تھر کانپنے لگا۔ اس نے کہا، حضور، جہاز پر کسی آسیب نے حملہ کر دیا ہے۔ پہلے بھی ایک ڈونگا غائب ہو گیا تھا اور پھر واپس آ گیا تھا۔ کانے نے گھرا کر کہا، بکواس بند کرو گنجے حرامی، یہ سب تمہاری شرارت ہے۔ تم نے جادو کے زور سے میری مرغی اور انڈا غائب کیا ہے، میں ابھی تمہیں اس کا مزہ چکھاتا ہوں۔ اور کانا کمر سے خنجر نکال کر باورچی کی طرف بڑھا۔ ماریا یہ کس طرح گوارا کر سکتی تھی کہ بے گناہ باورچی کو سزا ملے؟ اس نے آگے بڑھ کر کانے سفید فام کے آگے ٹانگ رکھ دی۔ وہ الجھ کر منہ کے بل فرش پر گر پڑا۔ سب ملاح ہنسنے لگے۔ کانا پریشان ہو گیا، غصے میں چلایا، میں تم لوگوں کو سمجھ لوں گا، تم سب حرامی پلے ہو، تم کو اس گستاخی کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ اور کانے نے ایک ملاح کے سینے میں خنجر کوپ دیا۔ وہ لڑکھڑا کر گر پڑا۔ وہاں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ اتنے میں کپتان بھی وہاں آ گیا۔ کپتان کانے کو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ اس نے ہزاروں روپے دے کر جہاز کو کرائے پر لے رکھا تھا۔ وہ کانے کو ساتھ لے کر اوپر چلا گیا۔ ماریا نے دیکھا کہ زخمی ملاح دم توڑ چکا تھا، گویا کانا سفید فام نے ایک اور انسان کو ہلاک کر دیا تھا۔ ماریا نے فیصلہ کیا کہ وہ اس سفید فام کانے کو اب وہ زندہ نہیں چھوڑے گی۔ کانا سفید فام اب موت سے نہیں بچ سکتا تھا۔ 5ویں روز دور سے جزیرہ نظر آنے لگا۔ ملاحوں اور سفید آدمیوں نے بڑی خوشی منائی۔ جہاز آہستہ آہستہ ہوا کے دوش پر چلتا ہوا جزیرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ جزیرہ کافی وسیع تھا مگر بے آباد تھا، صرف چند ایک وحشی قبیلے آباد تھے۔ سفید فام بردہ فروشوں نے اس جزیرے کو اپنا اڈا بنا رکھا تھا۔ وہ مختلف علاقوں سے لڑکیوں کو اغوا کر کے یہاں لا کر رکھتے تھے
और फिर वहाँ से दूसरे मुल्कों में ले जाकर फरोख्त कर देते थे। दोपहर के बाद जहाज़ जजीरे के किनारे पर जा लगा। मल्लाह छलांगे लगाकर उतर गए। दोनों सफ़ेद फार्म और जहाज़ का कप्तान जजीरे में एक पतली सी पगडंडी पर हो लिए जो अंदर जंगल की तरफ चली जा रही थी। मारिया भी उनके साथ साथ थी। वो थोड़ा सा पीछे रहकर उनका ताकुब कर रही थी। तीनों जंगल में काफ़ी दूर तक चलने के बाद एक काफ़ी बड़ी झोंपड़ी के बाहर जाकर रुक गए। ये झोंपड़ी केले की छत की थी और उसका दरवाज़ा बांस का था। काने ने सीटी बजाई। अंदर से काला हबशी बाहर निकला। उसने दोनों सफ़ेद फार्मों को देखकर खुशी का इजहार किया, सर झुकाया और कहा, जनाब अंदर तशरीफ़ ले जाएं। दोनों सफ़ेद लोगों ने कप्तान को रुखसत करते हुए कहा, कप्तान अब तुम जा सकते हो। तुम्हारी रकम आज शाम को तुम्हें मिल जाएगी। तुम्हारा वापस जाने का कब इरादा है? कप्तान ने कहा, जिस रोज़ आप चलने को कहेंगे चल पड़ूंगा। काना बोला, मेरा ख्याल है कि हम 2 रोज़ बाद यहाँ से लड़कियों को लेकर बसरा की तरफ कूच कर जाएंगे। तुम परसों शाम तक जहाज़ में खुराक पानी का ज़ख़ीरा भर रखो। ठीक है। कप्तान सलाम करके चला गया। काने ने उसे कुछ सोने की अशरफियाँ दे दी थी। अब दोनों सफ़ेद फार्म झोंपड़े में चले गए। मारिया भी उनके पीछे पीछे गई। अंदर जाकर देखा कि झोंपड़ा काफ़ी बड़ा है। पहलू में बांस का एक और दरवाज़ा है। ज़ाहिर है उधर भी कोई कमरा बना होगा। मारिया ने सोचा कि लड़कियां ज़रूर उसी तरफ होंगी। वो एक तरफ खड़ी होकर उनकी बातें सुनने लगी। अंदर 2 सफ़ेद फार्म बैठे फल खा रहे थे। काना उनमें सबसे आगे आगे था। मालूम होता था कि वही उनका सरदार है। काने ने कहा, कल 4 लड़कियां ही हम अगवा कर सके हैं। ये बड़ी शर्म की बात है। बास क्या करें, हमने जिस कबीले पर भी हमला किया वहाँ बूढ़ी औरतें थी या बच्चे थे, जवान लड़कियां कहीं भी नहीं थी। तुम उन बच्चों को ही अगवा कर लाते, हम उन्हें बसरे की मंडी में गुलाम बनाकर बेच देते। बास तुमने तो कहा था कि सिर्फ जवान लड़कियां ही अगवा की जाएं। उल्लू के पट्टे, कुछ अपनी अकल से भी काम ले लिया करो। जब कुछ ना मिले तो फिर जो कुछ मिले उसे उठा लेना चाहिए। अच्छा बास, मगर अब क्या इरादा है? काने ने सर खुजाकर कहा, परसों रात को मेरा ख्याल है हम यहाँ से निकल जाना चाहिए। अभी बसरे पहुँचते पहुँचते भी 6 रोज़ लगेंगे। इस अरसे में मल्लाहों का खर्चा बर्दाश्त करना होगा। बेहतर है कि हम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल चलें। 2 रोज़ मल्लाह यहाँ ज़रूर ठहरेंगे। वैसे तो कप्तान कह रहा था कि मैं कल ही रवाना हो जाता हूँ, मगर मुझे मालूम है कि उसके मल्लाह 2 रोज़ से पहले जहाज़ में सवार नहीं होंगे। वो जजीरे में आराम करेंगे और चल फिर कर टांगों की थकान को दूर करेंगे। ठीक है बॉस, परसों रात को ही सही। अगर हम लोग परसों रात को भी यहाँ से चल पड़े तो अगले हफ्ते में बसरे पहुँच जाएंगे। अभी बरसातें शुरू होने में 2 हफ्ते बाकी हैं। काना बोला, मगर पहले तो बड़ी बारिश थी। हाँ बॉस, कभी कभी बरसात पहले शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ अभी शुरू नहीं हुई। 2 हफ्तों के बाद बारिशों का मौसम ज़रूर शुरू हो जाएगा। इसीलिए तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से बरसातें शुरू होने से पहले निकल चला जाए। हम ज़रूर परसों रात को यहाँ से कूच कर जाएंगे बॉस। मैं कप्तान को जाकर अभी खबर देता हूँ। मारिया उनको उसी तरह बातें करता छोड़कर बांस का दरवाज़ा ज़रा सा खिसका कर दूसरे कमरे में चली गई। ये एक छोटा सा कमरा था जिसके फर्श पर सिर्फ चटाई बिछी थी। उस चटाई पर कोने में सिमटी हुई 4 सांवली सलोनी रंगत वाली जंगली लड़कियां सहमी हुई बैठी थी। मारिया के अंदर दाखिल होने से दरवाज़ा ज़रा सा खुला तो काने की नज़र पड़ गई। इत्तेफाक से वो दरवाजे को ही तक कर बात कर रहा था। उसने जो दरवाजे को खुलते और फिर बंद होते देखा तो चौंक कर बोला, ये अंदर कौन आ गया है? क्या मतलब, यहाँ तो हमारे सिवा कोई नहीं है, फिर अंदर कौन जा सकता है? काने को बावर्ची खाने वाला वाक़या याद आ गया। बावर्ची ने कहा था इस जहाज़ पर कोई भूत भी हमारे साथ सफ़र कर रहा है। फिर उसी की प्लेट से मुर्गी की टांग गायब हो गई थी। तो क्या भूत सफ़र करते करते यहाँ भी आ गया है? काना सफ़ेद फार्म बोला, देखो कोई शख्स अंदर तो नहीं आया। उसी वक्त बाकी तीनों सफ़ेद फार्म लपक कर दरवाजे की तरफ गए। उन्होंने दरवाज़ा खोला और जल्दी से अंदर दाखिल होकर इधर उधर तकने लगे जैसे किसी की तलाश में हों। उनको आता देखकर जंगली लड़कियां सहम कर और ज़्यादा सिमट गई। सफ़ेद फार्म आदमियों ने कमरे में चारों तरफ गौर से देखा, फिर बाहर आकर दरवाज़ा बंद किया और काने के पास जाकर कहा, जनाब अंदर तो सिवाय 4 लड़कियों के और कोई भी नहीं है। क्या तुम ठीक कहते हो? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ जनाब, लेकिन दरवाज़ा तो मैंने खुद अपने आप खुलते और बंद होते देखा है। हो सकता है हवा ने खोल दिया हो। यहाँ इतनी तेज़ हवा कहाँ से आ जाएगी? बहरहाल तुम ज़रा ख़बरदार रहना। ज़रूर बास। मारिया दूसरे कमरे में जंगली लड़कियों के करीब खड़ी थी। बेचारी लड़कियां खौफ से परेशान थी और अपने घर बार और माँ बाप की याद में आंसू बहा रही थी। मारिया उन्हें तसल्ली देना चाहती थी कि मत घबराओ, मैं आ गई हूँ। अब मैं तुम लोगों को तुम्हारे घरों में वापस पहुँचा कर ही दम लूँगी। लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहती थी। उसे डर था कि ये लड़कियाँ घबरा कर चिल्लाना या भूत भूत का शोर न मचाना शुरू कर दें और बना बनाया काम ख़राब हो जाए। उसकी ज़रूरत भी नहीं थी। मारिया बाहर आ गई। उस वक्त कमरे में सिर्फ काना सफ़ेद फार्म था, बाकी तीनों सफ़ेद फार्म जा चुके थे। मारिया का प्रोग्राम ये था कि जहाज़ में उन 4 लड़कियों को सवार करवा के जहाज़ को अगवा किया जाए और वापस हिंदुस्तान के जनूबी साहिल पर ले जाकर उन लड़कियों को उनके घरों में पहुंचा दिया जाए। यह बड़ा मुश्किल काम था। अव्वल तो उन लड़कियों को यहाँ से किस तरह उठाकर जहाज़ पर लादा जाएगा, फिर जहाज़ को अगवा करना भी जान जोखिम का काम था। मगर मारिया फैसला कर चुकी थी और उसे यकीन था कि यह काम ज़रूर करेगी। मारिया झोंपड़े से निकलकर बाहर जजीरे के जंगल में आ गई।
وہ سیر بھی کر رہی تھی اور سوچ بھی رہی تھی کہ کون سی ترکیب پر عمل کیا جائے۔ آخر اس کو یہی ترکیب مناسب نظر آئی کہ جب پرسوں سفید فام ان لڑکیوں کو جہاز پر سوار کرا دیں تو جہاز کو اغوا کر لیا جائے۔ یہ بھی آسان کام نہیں تھا، لیکن ماریا کے لیے ان بیوقوف جنگلی لڑکیوں کو جھونپڑے سے نکال کر جہاز تک لے جانا مشکل مرحلہ نظر آتا تھا۔ اگر وہ اپنے آپ کو ان پر ظاہر کر دے تو ہو سکتا تھا کہ وہ گھبرا جائیں اور شور مچا دیں یا پھر رونے اور چیخنے چلانے لگیں۔ بہرحال ماریا یہ خطرہ مول نہیں لینا چاہتی تھی۔ اس نے پرسوں کا انتظار شروع کر دیا۔ جزیرے پر ملاح سیر و شکار میں مصروف تھے۔ 2 روز تک ماریا نے بھی جزیرے کی خوب سیر کی۔ ملاحوں نے لکڑی کے بڑے بڑے ڈبوں میں میٹھا پانی بھر کر جہاز پر رکھ لیا۔ انہوں نے پھل بھی کافی جمع کر لیے تھے۔ وہ رات آ گئی جس رات جہاز کو جزیرے سے کوچ کرنا جانا تھا۔ ماریا کو یہ خطرہ تھا کہ کہیں سفید فام آدمی لڑکیوں کو آدھی رات کے وقت جہاز پر سوار نہ کرا دیں، کیونکہ پھر اسے جہاز اغوا کرنے کا وقت نہیں مل سکتا تھا۔ اس کی دعا قبول ہوئی اور جنگلی لڑکیاں شام کے وقت ہی جہاز پر سوار کرا دی گئیں۔ انہیں رسیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ وہ رو رہی تھیں۔ سفید فام اور ایک کپشی انہیں گھسیٹتے ہوئے جہاز پر لے گیا اور ان کو ایک کوٹھلی میں بند کر کے باہر موٹا سا تالا لگا دیا۔ ماریا یہی چاہتی تھی کہ ایک طرح سے ان سفید آدمیوں نے ماریا کا آدھا کام کر دیا تھا۔ اب صرف جہاز کو اغوا کرنے کا کام باقی رہ گیا تھا۔ اس پر ماریا کا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ سب سے بڑی مشکل بات یہ تھی کہ جہاز بادبانی تھا، یعنی ہوا کی وجہ سے چلتا تھا، اس لیے ایک دم سٹارٹ ہو کر جزیرے سے دور نہیں ہو سکتا تھا، بلکہ پہلے اس کے بادبانوں میں ہوا بھرتی، پھر وہ آہستہ آہستہ کنارے سے دور ہونا شروع ہو جاتا۔ اس لیے ملاح جہاز کو اغوا ہوتا دیکھ کر بڑی آسانی سے تیر کر اس پر سوار ہو سکتے تھے۔ پھر وہ کیا کرے؟ کیا جزیرے پر ہی تمام ملاحوں کو ہلاک کر دے؟ ماریا خواہ کسی کے خون سے اپنے ہاتھ نہیں رنگنا چاہتی تھی۔ جزیرہ آدھی رات کو روانہ ہونے والا تھا۔ بہتر یہی تھا کہ جب یہ ملاح جہاز کے بادبان کس لیں تو ماریا کسی طرح سے جہاز پر قبضہ کرے اور جہاز کو لے کر چلی جائے۔ سوال یہ تھا کہ قبضہ کیسے کرے؟ جب ملاح بادبان کھولیں گے تو ظاہر ہے سارے ملاح اور سفید فام تلواریں وغیرہ لے کر جہاز پر سوار ہو چکے ہوں گے۔ وقت کم تھا اور مقابلہ سخت۔ سوچتے سوچتے ماریا کا دماغ تھک گیا۔ آخر اس نے سر کو جھٹک کر اپنے آپ سے کہا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں نے اتنے مشکل کام کیے ہیں، یہ چھوٹا سا جزیرہ میرے آگے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اس خیال نے ماریا کو نئی طاقت دی اور اس کا دماغ تیزی سے چلنا شروع ہو گیا۔ چاروں لڑکیاں جہاز کے کیبن میں سوار ہو چکی تھی۔ ماریا نے جہاز پر جا کر جائزہ لیا۔ اس وقت شام ہو رہی تھی، سورج مغرب میں غروب ہو رہا تھا۔ اس کی لالی سمندر کی لہروں کو سرخ کر رہی تھی۔ کچھ ملاح ادھر ادھر کام میں لگے تھے۔ تینوں سفید فام کنارے پر آگ جلائے بیٹھے تھے اور شکار کا گوشت بھون رہے تھے۔ آخر رات ہو گئی۔ جہاز پر ہر شے لادی جا چکی تھی۔ جب رات گہری ہوئی تو سفید فام کانے نے حکم دیا کہ جہاز کے بادبان کھول دیے جائیں۔ 2 ملاح ستونوں پر چڑھ گئے اور انہوں نے بادبان کھول دیے۔ بادبانوں میں ہوا بھر گئی۔ ہوا خوب چل رہی تھی۔ ماریا عرشے پر کھڑی تھی۔ جہاز کا لنگر اٹھانے کے لیے 2 ملاح کنارے پر گئے۔ ان کو لنگر اٹھا کر سمندر میں چھلانگ لگانی اور پھر تیر کر جہاز کی سیڑھی کے ذریعے جہاز پر سوار ہونا تھا۔ ماریا کے لیے اب وقت بہت کم تھا۔ جہاز نے لنگر اٹھتے ہی جزیرے پر سے ہٹنا شروع کر دیا۔ اس وقت سفید آدمی عرشے کے جنگلے کے ساتھ لگ کر کھڑے تھے اور لنگر اٹھا کر سمندر میں چھلانگیں لگانے والے ملاحوں کو دیکھ رہے تھے۔ جہاز کے اوپر مشعلیں جل رہی تھیں۔ ان کی روشنی میں دونوں ملاح سمندر میں تیرتے چلے آ رہے تھے۔ جہاز کی رفتار بہت کم تھی۔ ماریا نے سوچا اگر اس وقت سفید فام آدمیوں کو سمندر میں گرا دیا گیا تو وہ تیر کر بھی واپس آ سکیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ جہاز کی رفتار تیز ہو لے اور جہاز کھلے سمندر میں چلا جائے۔ ملاح جہاز کے اوپر آ گئے تھے۔ اب جہاز جزیرے سے دور ہٹ رہا تھا۔ کچھ دور بعد جزیرہ کافی دور رہ گیا اور جہاز کھلے سمندر میں آ گیا۔ رات کے اندھیرے میں سمندر کی لہریں بڑی خوفناک معلوم ہو رہی تھی۔ سفید فام اب اپنے اپنے کیبنوں میں جا کر بیٹھ گئے تھے۔ ماریا سوچتی رہی اب وہ صبح کے وقت ہی حملہ کر سکتی تھی۔ رات کو وہ اپنی کوٹلی میں آ کر بوریوں پر لیٹ گئی۔ یہ جہاز اب بحیرہ عرب کی طرف جا رہا تھا۔ رات گزر گئی، دن نکلا تو ماریا نے باورچی خانے میں جا کر اپنے دستور کے مطابق ناشتہ کیا اور عرشے پر آ کر حالات کا جائزہ لینے لگی۔ کیا دیکھتی ہے کہ دونوں سفید فام جنگلے پر جھکے سمندر میں تیرتی مچھلیوں کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں۔ ماریا کے لیے یہ بڑا نادر موقع تھا۔ وہ قدم قدم چلتی ان کے پیچھے آ کر رک گئی۔ اب زیادہ انتظار کرنا خطرناک ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد ہو سکتا کہ ایسا سنہری موقع نہ ملے۔ ماریا نے ایک زبردست دھکے کے ساتھ دونوں سفید آدمیوں کو سمندر میں گرا دیا۔ ان دونوں کی ایک ساتھ چیخیں بلند ہوئیں اور وہ سمندر کی لہروں میں غوطے کھانے لگے۔ ان کی چیخ ایک ملاح نے سن لی تھی۔ اس نے شور مچا دیا۔ اسی وقت جہاز کے بادبان اتار دیے گئے اور ملاح کشتی اتارنے لگے تاکہ دونوں آدمیوں کو بچایا جا سکے۔ ماریا نے حملہ شروع کر دیا۔ جو ملاح کشتی اتار رہے تھے ماریا نے ان کو بھی سمندر میں دھکا دے دیا۔ اب وہاں شور مچ گیا کہ 2 ملاح بھی سمندر میں گر گئے ہیں۔ اس پر دوسرے ملاح اور کپتان بھی پریشان ہو گیا۔ وہ جنگلے پر جھک کر ملاحوں کو لہروں پر ہاتھ پاؤں مارتے دیکھنے لگا۔ اس نے چیخ کر کہا، کشتی گراؤ، کشتی گراؤ۔ سفید فام سمندر میں ڈوب رہے تھے کیونکہ انہیں اتنا زیادہ تیرنا نہیں آتا تھا۔
کشتی سمندر میں اتاری جانے لگی تو ماریا نے 2 اور ملاحوں کو سمندر میں دھکیل دیا۔ اس کے بعد اس نے پیچھے سے آ کر کپتان کو بھی سمندر میں دھکا دے دیا۔ اب صرف 3 ملاح باقی رہ گئے تھے جو ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ ماریا نے دیکھا کہ سمندر میں کپتان اور دوسرے ملاح ہاتھ اٹھا کر شور مچا رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں کشتی پھینکو، کشتی گراؤ سمندر میں۔ ماریا اسی انتظار میں تھی کہ باقی 3 ملاح سے بھی چھٹکارا حاصل کرے۔ ان میں سے ایک ملاح بوڑھا تھا اور یہ بڑا تجربہ کار تھا۔ ماریا نے ان کی جان بچانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اس کی مدد سے باقی سفر طے کرنا چاہتی تھی۔ موقع دیکھ کر ماریا نے باقی 2 ملاحوں کو بھی سمندر میں دھکا دے ڈالا۔ اتنے میں موٹا گنجا باورچی نیچے سے بھاگ کر اوپر آ گیا۔ اس نے جب سنا کہ کوئی عجیب طاقت باری باری سب کو سمندر میں گرا رہی ہے تو وہ چیخ کر کہنے لگا، میں نے کہا تھا نا کہ اس جہاز پر کوئی بھوت سوار ہے، سب نیچے آ جاؤ، مرنے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر اپنی جانیں بچا لو۔ اب باقی صرف بوڑھا ملاح، گنجا باورچی اور کانا سفید آدمی رہ گئے تھے۔ کانا سفید آدمی خوف کی وجہ سے نیچے بھاگ گیا تھا۔ ماریا نے ایک طرح سے جہاز پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس نے جہاز کے بادبان کھولنے کی کوشش شروع کر دی کیونکہ جہاز سمندر میں کھڑا ہو چکا تھا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ کپتان اور دوسرے ملاح تیر کر ایک بار پھر جہاز کی طرف آنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سفید آدمیوں کی تو سمندر کی موجیں نگل چکی تھیں۔ باورچی اور دوسرے بوڑھے ملاح نے جب جہاز کے بادبانوں کو اپنے آپ کھلتے دیکھا تو وہ خوف سے زرد ہو گئے۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ جہاز کے بادبان کھل گئے اور ہوا نے جہاز کو سمندر میں دھکیلنا شروع کر دیا۔ جہاز اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ باورچی کانپ رہا تھا، اس کا موٹا پیٹ کانپ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ باندھ کر آسمان کی طرف دیکھا اور گڑ گڑا کر کہا، اے خدا میری جان بچا لے، پیچھے گھر میں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھ پر رحم کر۔ بوڑھا ملاح بڑبڑانے لگا۔ وہ بادبانوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس جہاز پر کسی روح نے قبضہ کر لیا ہے، خدا ہم پر رحم کرے۔ باورچی بولا، روح ہم پر مہربان ہے، اس نے ہمیں کچھ نہیں کہا، وہ ہمیں بھی ہلاک کر سکتی تھی۔ اس کی کیا وجہ ہے بابا؟ بوڑھا ملاح مسکرایا، ہمیں اس کے لیے روح کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، یقیناً وہ ہم پر مہربان ہے۔ شاید وہ ہم سے کوئی بڑا کام لینا چاہتی ہے، مگر وہ کام کیا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ ماریا بوڑھے ملاح کی گفتگو سن رہی تھی۔ ان باقی بچے ہوئے لوگوں کا اعتماد حاصل کرنے کا یہی وقت تھا۔ بس ماریا نے قریب آ کر کہا، بابا میں ایک نیک دل روح ہوں، ظالم اپنے انجام کو پہنچے۔ ان لوگوں کے گناہوں کی فہرست بڑی لمبی تھی۔ ماریا کی آواز سن کر باورچی تو سجدے میں گر پڑا اور لرزتے ہوئے بولا، اے مقدس روح مجھے کچھ نہ کہنا، میں تمہارا غلام ہوں، میں تم پر اعتقاد رکھتا ہوں۔ ماریا نے کہا، گھبراؤ نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی۔ جن لوگوں نے انسانوں پر ظلم کیے تھے ان سے میں نے بدلہ لے لیا ہے۔ تم بے ضرر ہو، اٹھو اور میری باتیں تم دونوں غور سے سنو۔ باورچی اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور ملاح بھی ہمہ تن گوش تھا۔ ملاح نے کہا، اے مقدس روح کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم ہم سے کیا کام لینا چاہتی ہو؟ ماریا نے کہا، میں اس وقت سے اس جہاز میں سوار ہوں جب سے یہ بدماش سفید فام بے گناہ جنگلی لڑکیوں کو ان کے گھروں سے اغوا کر کے لائے ہیں۔ میں نے ان لڑکیوں کو بچانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اب میں چاہتی ہوں کہ جہاز کا رخ ہندوستان کے ساحل کی طرف موڑ دیا جائے تاکہ ان لڑکیوں کو ان کے ماں باپ کے پاس پہنچایا جائے۔ بوڑھے ملاح نے کہا، اے مقدس روح میں ہر حکم ماننے کے لیے تیار ہوں، ایسا ہی ہوگا۔ میں ابھی اس جہاز کا رخ ہندوستان کی طرف موڑ دیتا ہوں۔ اور اس نے بادبانوں کی رسیاں کچھ اس طرح کھینچی کہ جہاز نے نصف چکر کھایا اور مشرق کی طرف روانہ ہو گیا۔ موٹے باورچی کی طرف دیکھ کر ماریا نے کہا، تم ایک نیک دل شخص ہو، تمہارا کام صرف یہ ہے کہ اچھے اچھے کھانے پکا کر جنگلی لڑکیوں کو کھلاؤ، اور ابھی جا کر ان لڑکیوں کی رسیاں کاٹ ڈالو اور انہیں آزاد کرا دو۔ انہیں خوشخبری سناؤ کہ مقدس روح نے انہیں آزاد کر دیا ہے اور اب انہیں ان کے ماں باپ کے پاس لے جایا جا رہا ہے۔ باورچی ہاتھ باندھ کر بولا، اے مقدس روح نیچے ابھی آپ کا ایک دشمن باقی ہے۔ ماریا نے کہا، ہاں مجھے یاد آیا، ابھی کانا سفید آدمی باقی ہے۔ ٹھیک ہے، تم ایسا کرو کہ سب سے پہلے اسے کسی طرح سے اوپر لے آؤ، میں ابھی اس سے نپٹ لیتی ہوں۔ بوڑھا ملاح جہاز کے چکر کو بڑی مہارت سے گھماتے ہوئے جہاز کو ایک خاص زاویے پر رکھے ہوئے تھا۔ باورچی جلدی سے نیچے چلا گیا۔ کانا سفید آدمی اپنی کوٹلی میں بیٹھا تھا، سوراخ میں سے سمندر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے موٹے باورچی کو اندر آتے دیکھا تو گھبرا کر بولا، جہاز کا رخ کیوں موڑ دیا گیا؟ باورچی نے کہا، حضور نائب کپتان نے کہا ہے کہ ذرا اوپر آئیں اور حکم دے کہ جہاز کدھر کو لے جایا جائے، کیونکہ اب آپ ہی کپتان ہیں۔ کانا بولا، مگر یہ جہاز کا رخ کس نے موڑا ہے؟ باورچی نے کہا، حضور ہوا تیز ہے، بادبان کام نہیں کر رہے، آپ اوپر تشریف لا کر خود دیکھ لیں اور حکم دیں کہ جہاز کدھر کو ڈالا جائے۔ کانا سفید آدمی یہ سن کر بڑا خوش ہوا کہ اسے جہاز کا کپتان بنا دیا گیا۔ ایک طرح سے باقی ساتھیوں کے مرنے پر اسے تسلی بھی ہوئی تھی کہ اب وہ چاروں جنگلی لڑکیوں کو فروخت کر کے ساری دولت کا اکیلا مالک ہوگا۔ وہ جلدی جلدی سیڑھیاں پھلانگتا اوپر آ گیا۔ اوپر ماریا اس کا انتظار کر رہی تھی۔ بوڑھے ملاح نے گھوم کر کانے کی طرف دیکھا۔ باورچی بھی اوپر آ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ یہ لوگ اس کی موت کا انتظار کر رہے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ موت اس ظالم کانے کو اوپر کھینچ لائی ہے۔ کانے نے اوپر آتے ہی کہا، جہاز کا رخ مشرق کے بجائے مغرب کی طرف کرو۔ یہ تم جہاز کو واپس کس لیے لے جا رہے ہو؟ بوڑھا ملاح کہنے لگا، حضور چرخی اختیار سے باہر ہوئی جا رہی ہے، آپ خود آ کر دیکھ لیں۔ ہٹو پیچھے، میں خود جہاز کو چلاؤں گا، میں اب اس جہاز کا کپتان ہوں۔ اگر کسی نے میرا حکم نہ مانا تو اسے میں موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ باورچی نے دل میں کہا، پیارے تو کسی کو موت کے کیا گھاٹ اتارے گا، تمہیں تو خود موت اپنے پاس بلا رہی ہے۔ ماریا چاہتی تھی کہ ذرا کانے سے دو باتیں بھی ہو جائیں۔ سب سے پہلا کام ماریا نے یہ کیا
کہ نیچے جانے والے راستے کا دروازہ بند کر کے تالا لگا دیا۔ تالا لگنے کی آواز سن کر کانے نے مڑ کر پیچھے دیکھا اور بولا، یہ تالا کس نے ڈال دیا؟ ماریا نے کہا، میں نے۔ عرشے پر کسی ایسی عورت کی آواز سن کر جو نظر نہیں آ رہی تھی، کانا سفید آدمی ششدر سا ہو کر رہ گیا۔ یہ کس کی آواز تھی؟ اس نے بوڑھے ملا اور پھر باورچی کی طرف دیکھ کر کہا۔ باورچی سر ہلا کر بولا، میں نے تو کوئی آواز نہیں سنی کپتان صاحب۔ بوڑھا ملا بھی کہنے لگا، جی ہاں کپتان صاحب، میں نے بھی کوئی آواز نہیں سنی، شاید آپ کے کان بج رہے ہیں۔ اب ماریا نے کہا، ہاں میں نے بھی کوئی آواز نہیں سنی کپتان صاحب، کانا کپتان صاحب۔ اس پر کانا چکر کھا گیا، گھبرا کر گردن ادھر ادھر گھما کر بولا، یہ پھر عورت کی آواز ہے، کیا تم لوگ نہیں سن رہے؟ بوڑھے ملا اور باورچی نے ایک زبان ہو کر کہا، نہیں کپتان صاحب، ہم نے تو کوئی آواز نہیں سنی۔ ماریا نے کہا، میں نے بھی کسی عورت کی آواز نہیں سنی۔ کانا سفید آدمی دہشت سے پیچھے ہٹا۔ ماریا نے کہا، سنو اے قاتل کانے، میں اس جہاز کی مقدس روح ہوں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے تمہیں 2 آدمیوں کو بغیر کسی وجہ کے قتل کرتے دیکھا ہے۔ میں تمہیں اس جرم کی سزا دوں گی۔ جہاز کے جنگلے کے پاس جا کر سمندر کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ نہیں نہیں، یہ کہہ کر کانا دروازے کی طرف بھاگا۔ نیچے جانے والے دروازے پر تو تالا لگا تھا۔ اس نے زور سے لات ماری مگر دروازہ نہ ٹوٹ سکا۔ ماریا نے گرجدار آواز میں کہا، اے بدبخت ڈاکو، اب تمہارے لیے سوائے سمندر کی اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ یا تو تم خود بخود سمندر میں چھلانگ لگا دو اور یا پھر مجھے تمہیں دھکا دینا پڑے گا۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ کانا خوف سے پھیلی ہوئی ایک آنکھ سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا اور پھر بولا، تم کون ہو؟ ماریا نے کہا، میں ایک مقدس روح ہوں، مگر اس وقت تمہاری موت کا فرشتہ ہوں، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کانا عرشے پر بھاگنے لگا۔ ماریا ایک طرف کھڑی ہو کر اس کے بھاگنے اور دوڑنے کا تماشا کرنے لگی۔ اسے ایک خطرہ یہ بھی تھا کہ کہیں اس بھاگ دوڑ میں اس سے ٹکرا کر وہ خود سمندر میں نہ گر جائے، اس لیے اس نے کانے کو جلدی سے جلدی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا اور بھاگتے ہوئے کانے کو ایک ایسا دھکا دیا کہ وہ چیخ مار کر سمندر میں منہ کے بل گر پڑا۔ سمندر میں گرتے ہی اس نے ہاتھ پاؤں مارنے اور چیخنا چلانا شروع کر دیا، لیکن بہت جلد سمندر کی لہروں نے اسے اپنے اندر دفن کر لیا۔ اس کی موت کے ساتھ ہی جہاز پر ماریا کا مکمل قبضہ ہو گیا۔ اس نے موٹے باورچی سے کہا، اب نیچے جا کر جنگلی لڑکیوں کو آزادی کی خوشخبری سناؤ اور انہیں اوپر دھوپ پر کھلی ہوا میں لے آؤ۔ جو حکم مقدس روح۔ باورچی خوش خوش نیچے چلا گیا۔ بوڑھے ملا نے ادب سے کہا، اے مقدس روح، جب ہم لڑکیوں کو ان کے ماں باپ کے پاس چھوڑیں گے تو پھر ہمارے لیے کیا حکم ہوگا؟ ماریا نے کہا، یہ میں اس کے بعد فیصلہ کروں گی، کیونکہ ماریا کو ابھی امبر اور ناگ کو بھی تلاش کرنا تھا۔ ہو سکتا تھا کہ اسے اس جہاز میں سفر کرنے کی پھر ضرورت پیش آ جائے۔ تھوڑی دیر میں چاروں لڑکیاں خوش خوش ہنستی مسکراتی اوپر عرشے پر آ گئیں اور دھوپ اور روشنی میں سمندر کی طرف منہ کر کے لمبے لمبے سانس لینے لگیں۔ وہ بہت خوش تھیں۔ باورچی نے کہا، تمہیں مقدس روح کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اس روح کی وجہ سے ہی تمہیں آزادی ملی ہے۔ ایک لڑکی نے کہا، مقدس روح کہاں ہے؟ ہم دل و جان سے اس کا شکریہ ادا کریں گی۔ اب ماریا نے کہا، میں تمہارے پاس ہی کھڑی ہوں۔ ماریا کی آواز سنتے ہی چاروں لڑکیاں ایک دم سناٹے میں آ گئیں اور پھر جھٹ سجدے میں گر پڑیں۔ ماریا نے کہا، اپنے سر اٹھاؤ، سجدہ صرف خدا کے آگے کرنا چاہیے، کسی انسان یا روح کے آگے سجدہ جائز نہیں۔ اٹھو اور میری بات غور سے سنو۔ چاروں لڑکیوں نے سر اوپر اٹھائے اور جدھر سے ماریا کی آواز آ رہی تھی ادھر کو منہ کر کے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ ماریا نے کہا، مجھے تم پر اور تمہارے غریب ماں باپ پر ترس آ گیا تھا۔ میں تمہارے ماں باپ کو دیکھ چکی ہوں جو تمہاری جدائی میں رو رہے ہیں۔ اب جب تم ان کے پاس جاؤ گی تو وہ بہت خوش ہوں گے، لیکن خبردار کسی کے آگے میرا ذکر نہیں کرنا، صرف خدا کا شکر ادا کرنا، کیونکہ خدا کی مرضی اور مہربانی سے تمہیں آزادی ملی ہے۔ میرا تو محض ایک بہانہ ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ خدا نے مجھے تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ ایک لڑکی کہنے لگی، اے مقدس روح، ہم تمہاری باتوں پر دل و جان سے عمل کریں گے۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتی ہیں جس نے ہم پر رحمت کی بارش کی، پھر تمہارا شکریہ ادا کرتی ہیں کہ تم نے ہمیں ان ظالم درندوں سے نجات دلائی۔ ماریا نے کہا، بس اب جہاز پر آزادی سے چلو پھرو، خوب کھاؤ پیو، کیونکہ تمہارے دشمنوں کو خدا نے ان کے انجام تک پہنچا دیا ہے۔ لڑکیاں خوشی سے جھوم اٹھیں اور پھر جنگلی انداز میں عرشے پر رقص کرنے لگیں۔ باورچی اور ملا ان کی خوشی کے رقص کو دیکھ کر بڑے خوش ہو رہے تھے۔ پھر گنجے موٹے باورچی نے بھی ان کے ساتھ ہی بھاری بھرکم کمر مٹکا مٹکا کر رقص کرنا شروع کر دیا۔ ماریا اسے رقص کرتے دیکھ کر بڑا ہنسی۔ اس کے بعد باورچی نے دوپہر کے لیے بڑی شاندار مچھلی بنا کر سب کو کھلائی۔ ماریا نے کہا، تھوڑی سی مچھلی مجھے بھی کھلاؤ۔ باورچی نے کہا، اے مقدس روح، روحیں تو کچھ نہیں کھایا کرتی۔ ماریا نے کہا، ٹھیک ہے، مگر میں تمہاری پکائی ہوئی مچھلی ضرور کھاؤں گی۔ باورچی نے سر جھکا کر کہا، یہ میری خوش قسمتی ہے مقدس روح، اور اس نے ایک تھالی میں مچھلی کا ایک ٹکڑا رکھ کر میز پر سجا دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میز پر سے مچھلی کا ٹکڑا غائب ہو گیا۔ باورچی نے کہا، اے مقدس روح، کیا وہ تم ہی تھی جس نے میرے ڈونگے غائب کیے تھے؟ ماریا ہنس دی، ہاں وہ میں ہی تھی۔ باورچی نے پوچھا، کیا تمہیں بھوک بھی لگتی ہے مقدس روح؟ ماریا نے جھٹ کہا، نہیں، بھوک تو مجھے نہیں لگتی، مگر جب کبھی دنیا میں انسانوں کے درمیان آتی ہوں تو بھوک محسوس ہوتی ہے، پھر میں کبھی کبھی اپنی مرضی کی کوئی شے کھا لیتی ہوں۔ اس وقت باورچی خانے میں ان دونوں کے سوا کوئی نہیں تھا۔ ماریا نے کہا، یہ بات جنگلی لڑکیوں کو نہ بتانا ورنہ وہ پریشان ہو جائیں گی کہ ایک روح کو بھوک کیسے لگتی ہے۔
बावर्ची ने मुस्कुराकर कहा, ए मुकद्दस रूह, मैं कभी उनसे जिक्र तक नहीं करूंगा। मारिया ने कहा, ठीक है, अब तुम जरा गरम गरम कहवे का एक डोंगा उधर करो। जो हुक्म है मुकद्दस रूह। बादबानी जहाज बहरे हिंद में सफ़र कर रहा था। उस समंदर में हर वक्त बड़ी बड़ी लहरें उठती रहती हैं, इसलिए जहाज ज़्यादा डोलने लगा था। ये मौसम भी ख़राब था। एक रात खूब बारिश हुई और तेज़ हवाओं ने समंदर में तूफ़ान ऐसी कैफियत पैदा कर दी। लहरों ने छोटे से बादबानी जहाज़ के साथ खेलना शुरू कर दिया। लड़कियां घबरा गईं। मारिया ने उन्हें तसल्ली दी, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, खुदा ने तुम लोगों की लंबी उम्रें लिखी हैं, वो तुम्हें अपनी पनाह में रखेगा। बावर्ची भी परेशान था। बूढ़ा मल्लाह अरशे पर बादबान खोल रहा था, क्योंकि तेज़ हवा में बादबानों के फटने और जहाज़ के उलटने का खतरा होता है। बादबानों को लपेट कर वो नीचे आ गया। मारिया उसके करीब आकर बोली, घबराने की कोई बात नहीं है बाबा, तूफ़ान जल्दी ही गुजर जाएगा। बूढ़े मल्लाह ने कहा, मुकद्दस रूह, तूफ़ान ज़्यादा है और हमारे जहाज़ ने कभी समुद्री तूफ़ानों में सफ़र नहीं किया। हम तो इसे पुरसकून पानियों में ऐसे मौसम में ले जाते हैं जब तूफ़ान का खतरा नहीं होता। मारिया बोली, फिर क्या हुआ? सब कुछ ठीक हो जाएगा। सारी रात तूफ़ान जारी रहा और जहाज़ लहरों पर खिलौने की तरह डोलता रहा। दिन चढ़ा तो तूफ़ान थम चुका था। सूरज की रोशनी ने समंदर को शीशे की तरह चमका दिया था। मारिया और बावर्ची ऊपर आ गए। बूढ़ा मल्लाह उनके पीछे पीछे था ताकि बादबानों की रस्सियां खोल दी जाएं। अभी वो अरशे पर आई थे कि अचानक उनकी नज़र समंदर में मशरक़ की तरफ उठ गई। एक जहाज़ समंदर में बादबान खोले उनकी तरफ आ रहा था। बूढ़ा मल्लाह आंखें सुकेड़े बड़े गौर से जहाज़ को देख रहा था। ऐसे लग रहा था कि जैसे वो पहचानने की कोशिश कर रहा है कि ये जहाज़ कौन सा है। मारिया ने पूछा, बाबा तुम क्या देख रहे हो? बूढ़ा मल्लाह कहने लगा, कुछ नहीं मुकद्दस रूह, कोई तिजारती जहाज़ है और समाट्रा के जजीरों की जानिब से माल लेकर आ रहा होगा। बावर्ची खुश होकर बोला, हमारे करीब से गुजरेगा, मुसाफिरों को सलाम करेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। जो जो जहाज़ करीब आ रहा था, बूढ़ा मल्लाह कुछ ज़्यादा संजीदा होता जा रहा था, क्योंकि उसके दिमाग में ख़तरे की घंटियां बजने लगी थी। मारिया भी बड़े गौर से जहाज़ की तरफ देख रही थी। फिर उसने मल्लाह की तरफ देखकर कहा, बाबा तिजारती जहाज़ों के बादबान इतने लंबे नहीं होते। बूढ़े मल्लाह ने कहा, मुकद्दस रूह का ख्याल दुरुस्त है। फिर तुम्हारे ख्याल में ये जहाज़ किसका हो सकता है? मुकद्दस रूह, ये बातें तो हमसे ज़्यादा तुम्हें मालूम होनी चाहिए, क्योंकि रूहें तो गैब का हाल जान जाती हैं। मारिया ने जल्दी से कहा, ज़मीन पर भेजने के बाद खुदा ने मुझसे गैब का हाल जानने की ताकत आर्जी तौर पर वापस ले ली है। अब मैं ताकतवर तो बहुत हूँ, मगर गैब का इल्म नहीं रखती। ये इल्म तो सिर्फ खुदा को ज़ेब देता है। मल्लाह की निगाहें अभी तक उस जहाज़ पर जमी हुई थीं जो मशरिक़ की जानिब से बराबर उनकी तरफ बढ़ता आ रहा था। जो जो उसकी तस्वीर साफ हो रही थी, बूढ़े मल्लाह की परेशानी बढ़ रही थी। बावर्ची अब नीचे चला गया था। अचानक बूढ़े मल्लाह का चेहरा उतर गया। वो घबराई आवाज़ में बोला, खतरा, ज़बरदस्त खतरा। क्या हुआ? मारिया ने पूछा। ये तिजारती जहाज़ नहीं है, बल्कि बहरी डाकुओं का जहाज़ है। बहरी डाकुओं का नाम सुनकर मारिया के जिस्म में एक सनसनाहट सी दौड़ गई। ये खुद सर फिरे, जाहिल और संगदिल बहरी डाकू हमेशा मारिया के लिए दर्द सर बने थे। कमबख्तों को सिवाय लूट मार और कत्ल व गारतगरी के और कोई काम नहीं आता था। मारिया ने गौर से समंदर की तरफ देखा। वाकई एक बहरी डाकुओं का जहाज़ था, जिसके ऊपर खोपड़ी और 2 हड्डियों का स्याह झंडा दूर से फड़फड़ाता नजर आ रहा था। मल्लाह ने कहा, अब क्या हुक्म है मुकद्दस रूह, क्योंकि ये डाकू तो हमारे जहाज़ को तोपे मार मार कर गर्क कर देंगे और लड़कियों को भी अगवा कर लेंगे। मारिया ने एक पल कुछ सोचकर कहा, हम एक नेक मकसद लेकर आगे बढ़ रहे हैं, खुदा हमारी हिफाजत करेगा। तुम ऐसा करो कि जहाज़ के बादबान लपेट कर लंगर समंदर में डाल दो, ताकि जहाज़ इसी जगह खड़ा हो जाए। फिर नीचे जाकर सबसे निचले कमरे में लड़कियों को ले जाकर बंद कर दो, बाहर ताला डाल दो। बावर्ची से कहो कि वो ऊपर आने की हरगिज़ कोशिश न करे। तुम ऊपर आ जाना, जल्दी करो। बूढ़े मल्लाह ने नीचे जाकर ऐसा ही किया। फिर वो ऊपर अरशे पर आकर बहरी लुटेरों के जहाज़ को देखने लगा, जो अब करीब आ रहा था। मारिया ने उसे समझा दिया कि जब बहरी डाकुओं का जहाज़ करीब आए तो वो डाकुओं के सरदार से यही कहे कि वो समंदर में भटक गया है और उसके पास कोई मुसाफिर नहीं है, सिर्फ खुश्क मेवों की बोरियां हैं जो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। बूढ़ा मल्लाह बड़ा तजुर्बाकार था और इस किस्म के खतरों से कई बार गुजर चुका था। मारिया उससे ज़रा हटकर परे खड़ी थी और जहाज़ को अपनी तरफ बढ़ते हुए तक रही थी। बहरी डाकुओं का जहाज़ अब इतने करीब आ गया था कि उसके अरछे और रस्सों से लटके हुए डाकुओं के चेहरे साफ दिखाई दे रहे थे। बड़े खूनखार चेहरे थे, हर एक के हाथ में तलवार थी। मारिया इस किस्म के बड़े डाकुओं से निपट चुकी थी। वो हालात का मुकाबला करने के लिए हर तरह से तैयार थी। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। बहरी डाकुओं ने मारिया के जहाज़ के साथ क्या सलूक किया, नाग पर जंगल में क्या गुजरी, अंबर पैराशूट के जरिए किस मुल्क और किस जंगल में गिरा, ये सब हालात जानने के लिए इसी कहानी की अगली किस्त नेक्स्ट वीडियो में मुलाहजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारे चैनल हैदर वाइज को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।